So Thank you very much, ma'am. First of all, I would like to thank Ankush and ma'am for inviting me on this forum. So actually, in these days, getting into all those forums is very, it's kind of a very different scenario. But we are all part of this world. So since of this COVID, the life has changed, and I think this type of forums are much needed for students right now who are preparing for all competitive exams. So I again thank you all for inviting me on this forum. Thank you. Ji, sir. Sir, I would like you to brief about our initiative. We are like 1250 TechU faculties. We have been posted all over India through this Technical Education Quality Improvement Program in its phase 3. First time ever in 2017, we were recruited for the technical education quality improvement in the backward areas. So while our services, what we have found that in the backward areas also there are students who are very much capable in cracking gate ES, who can come in the mainstream and who have good technical knowledge. Just we need to guide them, mentor them. So from the previous 3 years we have been doing so. We have been teaching our normal semester classes along with our gate classes. We have been taking at our institutes. So during COVID, things went a bit difficult because we shifted to online education, all digital education means. So it was difficult to reach out to students. So finally, and students were having certain issues also. Then finally, when everything was said, then we thought that we were already providing gate classes to some limited students of our colleges. So we thought that we should come up with a plan or initiative so that we can benefit all the gate aspirants who of the India, so that they would be benefited, because COVID second wave ke time a lot of students also face some financial crunch. A lot of families have faced that. That was a reality. So we came up with this initiative of Let's Crack the Gate with TechU Faculty's YouTube channel. So we have brought this initiative. So in this particular initiative, we are providing 100% free gate course, complete gate course, that to 100% free of cost to all our TGC learners. So we are happy to note that 20,000 learners have joined with us, and they are religiously following our lectures. So And it's a great achievement, I guess. I mean, getting into a 20 odd thousand people associated with this program, it's a very great thing to be initially to achieve. And as you have told, what I have also discussed with Ankush is that this is a great initiative to start with, to provide a free GATE coachings to all students. So those who are keen in pursuing GATE or maybe like engineering services. So it's always it's always a sort of a dream for most of the engineering students right now in India to get into GATE or through IES. And the main reason what I found is like everyone wants to get something more from what he learns. So in order to achieve that, what you have right now in hand is GATE and engineering services, and the disha or the getting the proper direction is always very much needed. So what I have learned or what I have is like experience in my life is that self studies are okay. Self studies are very good. There is no comparison to that. But sometimes what happens now, then when we go on a self study, we always like roam here and there. Like you are running in a race and आपको पता ही नहीं है कहाँ जाना, so you keep on revolving around one or two or three things. ऐसे आप घूमते रह जाओगे. When you have a guidance and when you have a support system mechanism, then you are focused to what to achieve. So there is a very good saying for GATE and engineering services that no one is there to test how knowledgeable you are. All someone wants is कि how much score you can do. So यहाँ किसी को brain नहीं दिखाना है वहाँ पे कि I am Einstein, I am Newton, or I am something. No, they don't. They are not testing your knowledge to that. आपको वो करना ही नहीं. You all you need to score. आपको score करना है. आप जितना score करेंगे at the end of the day you are the winner. अब चाहे आपको कितना भी कुछ आता हो, आपने कितने भी एक्सपेरिमेंटेशन करे हो, बट दिस इज द हार्ड रियलिटी. मतलब आई माइट नॉट बी करेक्ट इन सेइंग ऑल दिस, बट यस, दिस इज द हार्ड रियलिटी ऑफ GATE and engineering services. No one is right now is asking for you to show your knowledge skills. They all is asking is to score, and to score you need to practice, and this is the only funda.
ऑल यू नीड टू डू इज प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस. सो जितना प्रैक्टिस करोगे, जितना स्कोर करोगे, उतना ही बेटर है. इंटरव्यू स्टेज इज ऑल ठीक है, आपको जितना नॉलेज गेन किया आपने, तो उतना आप जब प्रैक्टिस करते जाते हो तो उतनी नॉलेज आपको आई जाती है, बेसिक लेवल की नॉलेजेस आपको आई जाती है. सो अल्टीमेटली द बॉटम लाइन इज की प्रैक्टिस. आप जितना प्रैक्टिस कर लेंगे, जितना स्कोर करेंगे, जितना एक्सपीरियंस गेन करेंगे, न्यूमेरिकल का वेरिएशन देखेंगे, क्वांटिटी से ज्यादा क्वालिटी करेंगे, you will definitely succeed. So there is no option left. All you need to do is a practice. Now to achieve that practice, you need a focused guidance. मतलब आप ऐसे नहीं है कि आप एक 1+1 2 1+2 3 आप ऐसे दिन भर 100,000 क्वेश्चन लगाते रहिए, कोई नहीं पूछेगा आपको. आप सेल्फ सेटिस्फेक्शन ले सकते हैं कि मैंने आज दिन में 1000 क्वेश्चन लगा दिए, पर एट द एंड ऑफ द डे 50,000 में से एक भी क्वेश्चन नहीं आया गेट में, तो फायदा नहीं है. So all you have done is you lost your time. So simply, it's all about getting the quality of questions. अगर आपके quality of questions किए हैं, अगर आपको पता है चीजें, आप क्रैक कर सकते हैं. प्रेशर में आप क्रैक कर सकते हैं. See, this is all about time and hitting the right target. घर में बैठ के आप 500 क्वेश्चन लगा लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा. एग्जामिनेशन सेंटर में आपको जब 10 क्वेश्चन लगाने होंगे और आपको पता है यही 10 क्वेश्चन निर्धारित करेंगे आपकी रैंक, then the things changes. And with this changing scenario, with calculator on screen and everything, all you need to do is practice. So that's what I'm saying. आप जितना प्रेशर में झेल लेंगे उतना आप बेटर कर सकते हैं. So बॉटम लाइन वही है. आप इसमें मत रहिए कि मेरे को बहुत ज्ञान है, अर्जन कर लिया, मैंने 10 किताबें पढ़ डाली, 20 किताबें पढ़ डाली, उससे कुछ नहीं होगा. किताबें आप पढ़ लीजिए, बैक हैंड की आपके पास नॉलेज आ जाएगी, आप इंटरव्यू में अच्छा बोल पाएंगे. ये अच्छी चीज है, आप इंटरव्यू में बहुत अच्छा बोल देंगे, उसमें कोई मतलब किसी को संदेह नहीं है. पर वो इंटरव्यू तक पहुंचने के लिए आपको पहले क्वेश्चन करने पड़ेंगे. तो आप इंटरव्यू के लिए बाद में सोचेंगे, पहले आप सोचिए कि मैं इंटरव्यू तक पहुंच जाऊं. तो इंटरव्यू पहुंचने के लिए आपको पहले न्यूमेरिकल लगाने पड़ेंगे, उससे पहले आपको क्वेश्चंस करने पड़ेंगे. जितना आप घिस सकते हैं घिस लीजिए, जितनी कॉपियां भरनी है भर लीजिए. तो आप उस लेवल में पहुंच जाएंगे, उसके बाद आपको ऑटोमेटिकली इंटरव्यू में आंसर करना आएगा. दैट कॉन्फिडेंस ऑलवेज कम्स विद यू, विद योर रैंक. आपके पास, आपको पता है कि यार मेरे पास खोने को कुछ नहीं है. आपकी ऑल इंडिया रैंक 3 है एग्जाम्पल के लिए, और आप इंटरव्यू में जा रहे हैं, तो आप क्या उम्मीद कर रहे हैं? आप इंटरव्यू में 5 आंसर गलत भी देंगे तो वो बोलेगा यार ऑल इंडिया रैंक 3 है, इसको निकाल थोड़ी सकता हूँ. सो यू कैरी योर रैंक विद यू. दिस इज ऑल इंपॉर्टेंट. नाउ व्हेन यू आर एट द वर्ज, मतलब आप सोचो कटो कटे लाइन पे खड़े हो, 350 1000 या मान लीजिए आपकी 550 रैंक है. आप जानते हो यार मेरा इंटरव्यू अगर अच्छा हुआ तो मैं मिल सकता है, नहीं हुआ तो मैं बाहर जाऊंगा. तब आपका ये मैटर करता है कि आपको नॉलेज कितनी अच्छी है. तब आप थोड़ा नॉलेज सोचेंगे, बट आप वहां पर भी प्रेशर में आएंगे कि मेरा गलत नहीं हो जाए. ये जो प्रेशर होता है ये वेरी टफ है. तो उस वक्त आप सोचिए कि आपको कितनी नॉलेज है, अच्छी किताबें कितनी पढ़ी हैं आपने, कितने फॉरेन ऑथर्स के नाम याद हैं, तब आप वो फेंक सकते हैं. पर जब आपके पास रैंक हो तब, और पहले इंटरव्यू स्टेज में पहुंचने के लिए, तो वो जब जरूरी है. तो इसलिए अभी अगर प्रिपरेटरी स्टेज में, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको सीधा क्वेश्चन करना है, न्यूमेरिकल लगाने हैं, क्वेश्चंस करने हैं, प्रैक्टिस करनी है. बस आप जितना ये करेंगे उतना आप सक्सीड करेंगे, दैट्स फॉर श्योर. और इसका कोई ऑप्शन ही नहीं है. मतलब आप ये दुनिया में जितने प्रोफेसर, जितने कोचिंग्स आपको जो भी बताएंगे, उसका अल्टीमेटली सार यही है कि सेल्फ प्रैक्टिस में आपको जितने क्वेश्चंस आप लगा सकते हैं, अच्छे क्वेश्चंस, क्वालिटी, क्वांटिटी पे मत जाइए. मैं आज भी बोल रहा हूँ, कई स्टूडेंट्स ने, मैंने पर्सनली फील किया है कि कईयों ने क्वांटिटी के चक्कर में टाइम वेस्ट किया, टोटल टाइम वेस्ट कर दिया. मोटी मोटी किताबें बुक्स को क्वेश्चन करते रहे, जब कोई मतलब ही नहीं है. जब वो आना ही नहीं है उसको करने का कोई फायदा नहीं है. इसमें सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आपको सिलेबस पता होना चाहिए. आप करने बैठे हैं 1+1 जो कभी नहीं आने वाला. आप करने बैठे हैं एक ऐसा सब्जेक्ट जो कभी नहीं आने वाला. कई बार ऐसा होता है कि आपको बहुत अच्छा लगता है तो आप करने लग जाते हैं, और फ्लो में क्या होता है, आप करते करते सोचते हैं मेरे को कॉन्फिडेंस आ रहा है, मैं इसमें तो क्वेश्चन कर रहा हूँ, बहुत अच्छा कर रहा हूँ, काफी क्वेश्चन कर लिए, मतलब आई एम एक्सपर्ट इन दिस. बट वो सब्जेक्ट ही नहीं है आपके सिलेबस में. तो आप भले ही उसमें एक्सपर्ट हो जाओ, वो सिलेबस में आने ही नहीं वाला, तो आपके 6 घंटे या 6 दिन आपने लगा दिए होंगे, वेस्ट हो गए. तो आप लगाइए वहां ना जो चाहिए, मतलब जो आपसे रिक्वायरमेंट है आप उसके लिए फोकस करिए. जो आपसे मांगा ही नहीं जा रहा उसको फोकस करके कोई फायदा नहीं है. अब वो आप तब की तब है जब आपके रिज्यूमे में आप कभी लिखना चाहेंगे या इंटरव्यू में बोलना चाहेंगे सर मैंने तो उसमें भी एक्सपर्टीज हासिल करी है, तो ठीक है, दैट विल एड ऑन. बट कल के जैसा एग्जांपल है, आपको जेवलिन थ्रो करना है, आप डिस्क थ्रो करने में लगे हुए हैं, थ्रो तो दोनों ही करना है.
तो कितनी भी दूर फेंक लीजिए, आपको डिस्क भी फेंक लीजिए, जेवलिन भी फेंक लीजिए, मेडल जेवलिन के लिए मिलना है तो डिस्क थ्रो करके क्या फायदा है? तो इट्स ऑल अबाउट, आपको पहले तो सिलेबस पता होना चाहिए, आपको ये पता होना चाहिए मुझे पढ़ना क्या है और कितना पढ़ना है। मतलब ऐसा भी नहीं कि जिंदगी में मैं एक महीना में ऐसा सब्जेक्ट पढ़ रहा हूँ जिसमें से क्वेश्चन 1 नंबर का आने वाला है, और ऐसा सब्जेक्ट छोड़ रहा हूँ जिसमें से 10 नंबर का क्वेश्चन आने वाला है। ऐसे भी लड़के मैंने देखे हैं कि क्वेश्चन, मतलब बोलेंगे मेरे को ये सब्जेक्ट पढ़ना है, वो पढ़ने लग गए, भले ही सब्जेक्ट आपका सिलेबस में है, पर आपने ओवर उसमें इतनी मेहनत कर दी कि जिसमें आप मेहनत कर सकते थे आपने नहीं करी, तो दैट इज ऑल्सो अ लॉस। एंड आपको पता ही नहीं चलेगा ये कब हुआ, क्योंकि जब आप प्रिपरेशन कर रहे होते हैं ना, तो जब आपके क्वेश्चंस लगने लगते हैं तो आपको कॉन्फिडेंस होता है, वो कॉन्फिडेंस के बढ़ता जाता है, और वहां आपको एक अच्छे टीचर की जरूरत है। आपको टीचर बता देगा भैया ये करने की जरूरत ही नहीं है, मत करो इतना। तो आप थोड़ा, तब आपको चाहिए कि एक अच्छी मेंटरशिप, अच्छी गाइडेंस। तो उस स्टेज में यू आर एन अ पॉइंट कि आपको कोई बताए कि साहब ये नहीं करना है, या ये करना है, या ये इतना ही करो जितना काम आएगा, या वो फॉर्मूला रटना है तो रट लो, उसके उसमें मत जाओ कि ये फॉर्मूला डिराइव कैसा हुआ। अब वो तो आइंस्टीन को ही होगा पता कि कैसे डिराइव हुआ, पर आप फिर सोचो कि मैं डिराइव कर दूंगा और मैं कुछ भौकाली उसमें कर दूंगा, ऐसा कभी कुछ नहीं होगा। अपने नाम का आपको नंबर नहीं बनवाना है वहां पे कि न्यूटन्स नंबर, प्रेंटल नंबर, मेरे नाम का भी नंबर होगा, ऐसा क्या कर लोगे? नाम, अपने नाम का नंबर आप बाद में बनाओगे, पर उसके उसके अंदर आपको रिसर्च नहीं करनी है। सी, गेट इंजीनियरिंग सर्विसेज डोंट डू रिसर्च, इट्स नॉट अबाउट गेटिंग रिसर्च। आप रिसर्च करना चाहते हैं आप आईआईटी में जाइए, आप रिसर्च करिए। प्रिपरेशन के टाइम में आप रिसर्च मत करने बैठ जाइए कि वो सॉइल में ऐसा होगा, या मैं ऐसा करता तो क्या पता वो फैक्टर लगता है। आपको कौन पूछ रहा है? ये आपसे जो पूछा जा रहा है आप बस वही आंसर करिए, ठीक है? सो ऑल यू नीड टू डू अ फोकस। आपको घोड़ा बनना पड़ेगा जहां पर सिर्फ यहां पर आंखों पे पट्टी लगी है, ठीक है? आप ज्ञानी ना बने कि मैं ये भी पढ़ूंगा मैं वो भी पढ़ूंगा, नहीं, आपको जरूरत ही नहीं है, वो पूछ ही नहीं रहा आपसे। तो ये जो एक फैक्टर है ना कि कितना पढ़ना है और कौन सा टॉपिक पढ़ना है और कितना एफर्ट डालना है, दिस इज व्हाट डिफाइंस एंड दिस इज व्हाट चेंज द गेम। आपके में और एआईआर वन में खाली फर्क इतना ही है इस वक्त। द प्लेइंग फील्ड इज वेरी कॉमन, द प्लेइंग फील्ड इज फिक्स्ड। प्लेइंग फील्ड में कोई डिफरेंस नहीं है, आप क्रिकेट की तरह ही प्लेइंग फील्ड मान के चलिए। बट एक अच्छा कोच जिसके पास है, एक अच्छा ट्रेनिंग किसके पास है, एक अच्छी फैसिलिटी किसके पास है, वो डिफाइन करेगा कि वो कौन अच्छा खेल पाएगा। हाँ, एक्सेप्शंस हो सकता है, एक्सेप्शंस कई बार होता है, विराट कोहली पहली बॉल पे भी आउट हो सकता है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि साहब उसको खेलना नहीं आता। तो आप ये मत सोचिए कि मैं यार, आपने, हो सकता है कि आपके किसी ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज में आपने प्रैक्टिस के लिए किया और आपकी रैंक नहीं आई, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको कुछ नहीं आता। हो सकता है एक अच्छा दिन उस दिन नहीं हुआ, हो सकता है, इट इट कैन हैपन। मतलब आपके साथ कुछ भी आपको लगा कि यार वो होना चाहिए था, वो मैं नहीं कर पाया, मेरी ऑल इंडिया रैंक किसी में नहीं आई, या आप अपने आपको कभी कंपेयर करने के मोड में घुस जाते हैं, यार वो मेरा फ्रेंड था वो तो साला 3 घंटे भी नहीं पढ़ता था, उसकी मेरे से अच्छी रैंक आ रही है। तो इसके केस में मत फंसे, ऐसा चांसेस हैं, लेकिन आपकी ग्रास रूट कंसेप्ट को पकड़ के रखिए, प्रैक्टिस करते रहिए। आई एम टेलिंग यू दिस इज द ओनली सॉल्यूशन। मैंने मैंने जब फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था मेरा, तो आई कैन टेल यू दैट दिस वाज द ओनली रीजन विच आई रिग्रेटेड फॉर माई लाइफ, कि मैं उस फ्लो में चला गया। होता क्या है ना, जब आप क्वेश्चन पेपर देने बैठते हैं, तो आप क्वेश्चन पेपर में क्या होता है, आपने पहला गेट के क्वेश्चन, आप गेट का पेपर देने बैठ जाइए, और आप मान के चलिए मैं गेट का पेपर दे रहा हूँ, तो आपके पहले 4 क्वेश्चन आपने किए, बोले ये भी हो रहा है, दूसरा क्या ये भी हो रहा है, तीसरा क्या ये भी हो रहा है, 6, 10, 12, 15 हो गए। आपको लग रहा है मतलब आज तो यार, मतलब आज मैं फोड़ दूंगा, ऑल इंडिया रैंक 10 के अंदर ही आज तो, और 15 क्वेश्चन तो मेरे खड़े खड़े हो रहे हैं। अब क्या होता है, आप उस फ्लो में बह जाते हो, आप पीछे पड़ जाते हो कि मैं सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में लगा हूं, लगे हुए आप उस फ्लो में, जब आपका माइंड घुस जाता है ना, तो आपको लगता है यार कि ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी हो रहा है, ये भी हो रहा है, सब कुछ होता जाता है। और उस वक्त क्या होता है कि दिस दिस इंटेंशन ऑफ योर गेटिंग ऑल क्वेश्चंस डन ना, दिस विल लीड टू योर डाउनफॉल। क्योंकि आप उस वक्त ऐसी गलतियां कर रहे होते हैं, क्योंकि गेट इज वेरी स्मार्ट, वो आपको पहले 2 ऑप्शन ऐसे देता है जो आपके पहले अटेम्प्ट में आ जाता है। और क्या होता है, जब भी पहले अटेम्प्ट में आंसर आए ना, उसको आप रुक जाओ एक बार। देखो, V इक्वल टू आई आर वाला फॉर्मूला है, तब मैं नहीं बोल रहा, तो कुछ ऐसा कंसेप्चुअल फॉर्मूला था, आपने लगा दिया, एक कंसेप्ट आपने उसमें नहीं लगाया और आपका पहली बार में आंसर आ गया, तो एक बार रुक जाओ। इतना बेवकूफ तो गेट भी नहीं है कि इतना आसान से आंसर दे देगा। ऑप्शन दिख रहा होगा आपको भले ही, अब रुक जाइए, एक बार सांस लेकर दोबारा से एक बार देख लीजिए मैंने सही किया है कि नहीं। क्योंकि अगर आप उस फ्लो में चलते जाएंगे ना, तो जो मेरे साथ हुआ वो आपके साथ होगा।
मैंने जब गेट 2013 दिया तो मैं क्वेश्चन देना चालू किया। मैंने सोचा अंग्रेजी और मैथ्स बाद में देंगे, पहले टेक्निकल उड़ा देते हैं, बाद में अंग्रेजी मैथ्स देनी है, कम से उसमें नंबर ही ऐसे कम आने हैं। अच्छा, इस पे भी मैं बताऊंगा, इंग्लिश और मैथ्स अगर अब बचा है तो इसके ऊपर भी वैसे ये भी आपका एक प्लेइंग फील्ड डिफाइन करता है। अगर आपने इसमें भी अच्छा कर लिया तो कई बार हो सकता है रैंक, सिर्फ रैंक का डिफरेंस इज ऑफ 2 या 3 नंबर। आपके 3 ऑप्शन गलत हो गए, उसके 3 सही हो गए, देयर इज अ डिफरेंस ऑफ 6। सी, यू हैव टू बी वेरी कैलकुलेटिव इन दिस। डोंट थिंक ये गेट इज समथिंग मैं पेपर देके आ जाऊंगा, नहीं है, दिस इज ऑल द कैलकुलेशन। आपकी स्ट्रेटेजी फिक्स होनी चाहिए। तो जब मैंने 2013 का गेट दिया तो पहले 10-15 क्वेश्चन बहुत अच्छे जा रहे ये भी हो रहा है, ये भी हो रहा था, वो ये भी हो रहा है, ये भी हो रहा है वाले फॉर्म में हम घुस गए, करते चले गए, करते चले गए। और जो 65 क्वेश्चन कुछ थे तो मैं देखा कि यार मैं तो करीब 55-57 क्वेश्चन कर चुका हूँ। तो मैं सोचा यार ये तो बहुत है, ऑल इंडिया रैंक 100 के अंदर आ जाएगी। तो बस आज तो खत्म है, इसके बाद तो पढ़ने की जरूरत भी नहीं है, छोड़ देते हैं। तो दे दिया। और फिर मैं सोचा यार अभी तो 10-15 मिनट बचे हैं, तो ये 5-6 भी क्यों छोड़ू, ये भी कर लेते हैं। तो पता चला ऑल इंडिया रैंक 10 से 1 हो जाए, क्या पता। और वो लालच आपको दिखने लग गया तो आपने भर दिया। मैं भी फॉर्म में था, मैं भर देता भाई, इसमें कुछ है ही नहीं। और तब मैंने जब फर्स्ट दिया था 2013 में, दैट वाज ऑफलाइन। सो ऑफलाइन में क्या होता है ना, आपके पास थोड़ा पेपर हाथ में तो आप देख लेते हो पलट पलट के, यार ये भी बचा है कि नहीं बचा है, उसमें टाइम कम लगता है। कैलकुलेटर भी हाथ में था, तो सब कर डाला। तो लास्ट में आई हैव लाइक आउट ऑफ 65 आई हैव अटेम्प्टेड अराउंड 62 ऐसा अटेम्प्ट कर दिया। 2 छोड़े थे, वो भी अंग्रेजी के, वो मतलब उसमें ज्यादा रिस्क लेनी नहीं थी, इतनी अच्छी इंग्लिश है नहीं। तो फिर मैंने सोचा चलो दे दाके चले। अच्छा, बाहर निकला है तो उसके बाद लगा कि यार ये तो मतलब आज तो फाड़ दिया बिल्कुल। आज तो मतलब घर वालों को मैंने फोन कर दिया कि आप बस तैयारी कर लो, अंडर 10 रैंक आ रही है। दोस्तों के साथ घूम रहे थे, मतलब पूरे जोधपुर में घूमते फिर रहे थे हम। अच्छा, तो अब पिताजी बोलते हैं कि साहब अच्छा है, अब तुम अपना वो दे दो पेपर, हम देख लेते हैं तुम्हारे रैंक कितनी आ रही है, ये वक्त क्रॉस चेक कर लेते हैं। हमने कहा, जरूरत ही नहीं है भैया, इतना अच्छा पेपर दे के आए हैं, अपने लड़कों की रैंक, अपने क्षमता पे शक कर रहे हैं। तो पिताजी बोलते नहीं, क्षमता पे शक नहीं कर रहे, वो देख लेते हैं कि तुम्हारे कितने आए हैं, ABCD क्या लगा के आए हो। मैंने यार इतना अच्छा रैंक आने वाला है हमारा, तुम कहाँ अब हमारे कैलकुलेशन में पड़े हो, आज का दिन तो जीने दो, फिर देखते हैं। तो बोले, चलो ठीक है। तो मैंने अपना पेपर का ऑप्शन जो थे, वो ऑप्शन आप दे सकते थे तो दे दिया, क्योंकि ऑफलाइन पेपर होता था तो पेपर तो आ जाता था, पेपर हाथ में होता था। अब जब ये दे दिया उसके बाद हमारे पिताजी हमारे पास फोन करते हैं 8:30 बजे। और उस वक्त तो दुनिया में हम, ऐसा लग रहा था कि हम ही हैं, ऑल इंडिया रैंक 10 के अंदर थी, दोस्त वोस्त अलग ही हवा में थे। यार तुमने तो यार गजब ही कर दिया है, ये है, अब तो तेरे पास इतने ऑफर होंगे, ये होगा, तो करोड़पति बन जाएगा, तो लखपति बन जाएगा। तो फादर फोन करके बोलते हैं कि तुमने क्या कर दिया। अब मैं सोचा ये उनका जो रिएक्शन है वो ये होगा कि भैया तुमने क्या कर दिया, मतलब तुमने तो मतलब हो सकता है 100 में से 90 नंबर ला दिए, इतने तो अटेम्प्ट ही कर डाले थे ना मैंने। मतलब अटेम्प्ट मेरा 96 नंबर के आसपास का था। तो आई वॉज एक्सपेक्टिंग आ गए होंगे, मतलब कुछ ऐसी गजब भौकाली नंबर। और पिताजी हमें बोलते हैं भैया तुम्हारे 55 नंबर नहीं बन रहे। तो हमने बोला यार क्या मजाक काहे कर रहे हो, रात का समय है, साढ़े 9 बज रहे हैं, तो पेपर देखे हैं, 55 नंबर नहीं बन रहे, क्या मतलब है। मैंने तो चेक कर लो। तो हमने बोला लाओ बैठ लेते हैं। तो मैं सोचा कि मैं अकेले नहीं चेक करूँगा, मैं अपने रूममेट्स को बुला लिया कि भैया तुम भी बैठ जाओ, देखो हो सकता है मैं फॉर्म में फिर 100 जोड़ दूँ, तुम भी बैठे। और 2-3 आंसर की बैठते हैं लेके, एक से तुम नहीं मानेंगे, तो 2-3 आंसर की लेके मैं बैठा। और जब चेक किया तो वो वाकई में 47-55 के बीच में घूम रहा गेम। अब वहां आपकी लाइफ चेंज हो जाती है। देन यू रियलाइज कि यू हैव डन अ ब्लंडर। दिस वॉज, आई एम टॉकिंग कि दिस वॉज द ब्लंडर। अगर आप क्वेश्चन अटेम्प्टिंग मोड में फ्लो में बहते चले गए तो यू विल एंड अप विद समथिंग दिस। अब आपको समझना पड़ेगा कि भैया मैं तसल्ली से क्वेश्चन वही करूं जो हो रहा है। ओवर अटेम्प्ट का तो लॉजिक ही नहीं है। गेट के केस में, मैं आपको पहले ही बोल रहा हूँ, गेट के केस में आप रिस्क नहीं ले सकते। आप इंजीनियरिंग सर्विस में जितनी रिस्क लेना चाहते हैं लीजिए, मैं बोलता हूँ आप उसमें खेलिए, मतलब वहां तो आप हर बॉल पे छक्का मारने की कोशिश करिए। देयर आर 2 डिफरेंट एग्जाम। गेट इज स्कोरिंग प्रिसाइसली, मतलब आप अगर 10 एरो मार रहे हैं तो 10 के 10 अगर बुल साई हो रही हैं, दैट इज द प्रिसीजन। ठीक है। इंजीनियरिंग सर्विसेज इज बिल्कुल स्कोरिंग हैवीली, मतलब आप तो वहां एकदम खेल रही है, मतलब हर बॉल पे एकदम ठोकना चालू करेगी, मैं तो 120 में 120 अटेम्प्ट कर दूंगा, क्योंकि वहां है मैक्सिमाइज द स्कोर विद वास्ट नंबर ऑफ क्वेश्चन। आपके पास खेलने के लिए बहुत है, 120 क्वेश्चन है, 120 क्वेश्चन आप करते रहिए, आपके कुछ भी नहीं है, मतलब आपके पास टाइम ही टाइम है और आपके क्वेश्चन ही क्वेश्चन है, भरमार है। और उसका मैं लॉजिक बताता हूँ, वो बहुत ईजी है। गेट में
आपको मैक्सिमाइज करना है स्कोर विद प्रिसीशन। तो आप हवा में मत जाइए कि मैं ये भी कर दूंगा वो भी कर दूंगा, और आप करने में एंड अप हो जाएंगे बहुत बुरी तरह में। और ये जो फ्रस्ट्रेशन है वो लाइफ लॉन्ग होती है। तो रिग्रेट होता है ना, काश वाली फीलिंग, लाइफ में जो काश वाली फीलिंग होती है, काश मैंने वो देख लिया होता, काश मैं पीछे वो कर चुका होता, काश मैं ये करता, तो दिस विल गो विद यू लाइक विद लाइफ। आज भी मैं कई बार ऐसा लगता है कि मैं काश ये करता, बट ठीक है, हर चीज अच्छे के लिए होती है शायद। तो बट आपके केस में मैं सभी को ये बोलूंगा कि डोंट फॉल इन दिस ट्रैप ऑफ काश, एंड डोंट ट्रैप फॉल में मत करिए कि अब मैं क्वेश्चन अटेम्प्ट करते जाऊंगा। So this is all about GATE. GATE is about precision, practice and focused aim. जितना सिलेबस में उतना नो ज्ञान, नो रिसर्च, नो रिसर्च एट ऑल। मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ, रिसर्च बिल्कुल नहीं करनी है कि मैं गूगल भी कर लूँ, मैं यूट्यूब विकीपीडिया हर जगह पढ़ लूँ कि इसमें सॉइल की लेंथ इतनी होनी चाहिए क्या नहीं होनी। कोई पूछने नहीं वाला आपसे, और आपको करना ही नहीं है। आप ये मान के चलिए आपको जितना पढ़ाया जा रहा है, जितना क्वेश्चन आने वाला उतना ही करना है। अब आ जाइए आप इंजीनियरिंग सर्विसेज पे। इंजीनियरिंग सर्विसेज के अंदर आपको कुछ नहीं करना। अगर आपको, मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने बिना कोचिंग के इंजीनियरिंग सर्विसेज जब दिया था 2013 में कॉलेज से, सिर्फ 4 महीने मेहनत करी थी और उसमें कुछ नहीं किया था। ये तब हुआ जब हम बुरी तरह से गेट में धाराशायी हो चुके थे। तो गेट में धाराशायी होने के बाद तो फिर आपके कॉलेज में तो जग हसाई हो गई, अरे भैया तुमने क्या उखाड़ लिया, तुम तो साला 4 साल से पढ़ रहे थे, तुम तो 4 साल से गुणगान गा रहे थे कि यार तुम तो गेट में ठोक दोगे, तुम इंजीनियरिंग ठोक दोगे। सोचा यार ठीक है, हो गया। नहीं तुम तो यार बहुत बोलते थे, हम तो बिना पढ़े गए तुमसे 2-4 नंबर कमाए होंगे, उससे क्या है, 2-4 ही तो कमाए। हमने जीवन जिया, तो हमने भी सोचा यार बात तो सही है, साला लड़कों ने तो जीवन भी जिया, हमने तो कुछ किया भी नहीं है। तो उस स्टेज में मैंने सोचा कि अब यार इस प्रेशर को झेलना पड़ना मतलब टफ है, तो ट्राई फॉर समथिंग इंजीनियरिंग सर्विसेज। सिंपल सा जुगाड़, किसी भी कोचिंग एकेडमी की, किसी की भी, पास 13 ईयर पास 20 ईयर की इंजीनियरिंग सर्विसेज की बुक उठा लो, सिर्फ क्वेश्चन पेपर की, और उसको लगा डालो और रट डालो। मतलब लगाना और रटना। उसमें अगर कोई बोला कि ऑस्टेनेटिक स्टेबलाइजर इज निकल क्रोमियम, तो निकल रट लो, निकल ही है। उसमें ज्ञान ही नहीं लगाना कि क्रोमियम क्यों नहीं है, ठीक है। ऑस्टेनेटिक स्टील इज मोर वेल्डेबल देन फेराइटिक स्टील, एंड मतलब ऑस्टेनेटिक फेराइटिक एंड मार्टेनसाइटिक इन टर्म्स ऑफ वेल्डेबिलिटी, रट लो। ज्ञान ही मत लगाओ कि क्यों ऑस्टेनेटिक में वो होता है, ये मैग्नेटिक है वो, अब रट डालो कुछ चीजें। बिल्कुल इंजीनियरिंग सर्विसेज ऐसा आपको बता रहा हूँ ना, इंजीनियरिंग सर्विसेज है घोंटना। गेट है आपका, आप आईआईटी वाले से एक्सपेक्ट करोगे कि आईआईटी का पेपर होना है, ठीक है। इंजीनियरिंग सर्विसेज वाले होते हैं बाबू। इंजीनियरिंग सर्विसेज का पेपर बनाता कौन है? इंजीनियरिंग सर्विसेज का पेपर बनाती है यूपीएससी। यूपीएससी है टोटल बाबू, ठीक है। अब किसी आप बाबू से एक्सपेक्ट करो कि भैया 120 क्वेश्चन बनाने हैं। मैं यहाँ क्वेश्चन बनाता हूँ रेलवे में, अब मैं कैसे क्वेश्चन बनाता हूँ, मुझे क्वेश्चन पेपर बनाना है 1 हफ्ते बाद का, तो मैं 2 दिन पहले जागता हूँ कि यह क्वेश्चन बनाना है, और 2 दिन पहले जागने के बाद मैं क्या करता हूँ, मैं बोला यार कहीं से क्वेश्चन बैंक लाओ। देखो सिंपल सी बात है, आपके क्वेश्चन लिमिटेड है। अगर आप न्यूमेरिकल नहीं बना रहे हो तो आपके क्वेश्चन लिमिटेड है यार। आप क्या पूछ रहे हो किसी से ज्यादा, मतलब आप मान लो झंडे के बारे में आपको क्वेश्चन बनाना है, आप भारत के झंडे के बारे में क्या क्वेश्चन बना लोगे? कितने रंग होते हैं, क्या डायमेंशन होती है, वो करंट क्या, वो कलर क्या सिग्निफाई करता है, वो कब पहली बार इनॉग्रेट हुआ था, उसमें कितने फेरबदल हो गए? हद मार के आप 10 क्वेश्चन बना लोगे, उसके बियॉन्ड तो नहीं बना सकते। अब ये तो नहीं बोल सकते ना वो पहले पोलैंड का झंडा था फिर वो भारत में कन्वर्ट हुआ, या वो पहले झंडा अमेरिका का होता था तो वो भारत में अब कन्वर्ट हुआ, अब कर ही नहीं सकते, ठीक है। अब यहाँ इंजीनियरिंग सर्विसेज इज टोटली रट्टूबाजी का काम। पहले बनाता कौन है? यूपीएससी, किसी प्रोफेसर के थ्रू बनाती है। अब प्रोफेसर होते हैं ठंड मिजाज के, 50, 55, 60 उम्र में आ चुका है आदमी, उसके बाद वो आपको इतना कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन बनाएगा ही नहीं जो कि ना ही हो। और अगर आपको इंजीनियरिंग सर्विसेज में कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन मिल रहा है तो छोड़ दो, उसमें ज्ञान ही मत लगाओ। ऐसा क्वेश्चन आ रहा है ईओ पे, लेने का ही नहीं है कि यार मैं हो ही नहीं सकता, ऐसा कैसे हो सकता है, नहीं हो सकता, छोड़ दो। क्योंकि आपके पास 10 ऐसे क्वेश्चन पड़े हैं जो आप कर लोगे, और उसमें फंस गए तो आपका 10 मिनट 15 मिनट आप वेस्ट करोगे। इंजीनियरिंग सर्विसेज का सूत्र यह है कि एक एक क्वेश्चन आप एक बार सरसरी निगाह से पढ़ लो। कई क्वेश्चन ऐसे हैं, कई स्टूडेंट्स मैंने ऐसे देखे हैं जो इंजीनियरिंग सर्विसेज का पेपर का 70% ही पढ़ पाते हैं, क्योंकि वो ईगो में फंस जाते हैं कि मेरे 70 मैं वो क्वेश्चन किया क्यों नहीं। बाहर आके मेरे को एक बार बता रहा है यार वो क्वेश्चन मैंने किया है, मैं फुल अटेम्प्ट मार लिया यार, वो 0.5 तक की वैल्यू तक मैं घुस रहा था, उसके बाद बस मुझे एक और कुछ करना था फॉर्मूला, वो मैं नहीं कर पाया। उसमें अगर उसने 15 मिनट वेस्ट कर दी ना, तो ऐसे जो
बच्चे वाले जो क्वेश्चन आते हैं ना, मैं वही बोलूँ, ऑस्टेनेटिक वाले, रटने वाले, या ऐसे टाइप के जो फोकट के नंबर मिल रहे थे, वो आप छोड़ देते हो। फिर आपको रिग्रेट ये होता है कि मैं उसको कर लेता तो मेरे नंबर ज्यादा आते, क्योंकि आप उसको करने के चक्कर में आप एक नंबर ज्यादा से ज्यादा उखाड़ लोगे, और आप जो पहले 10 कर सकते थे उसके 10 नंबर आप वेस्ट कर दोगे। इंजीनियरिंग सर्विसेज का सिंपल सा रूल है, पिछले 20 साल के क्वेश्चन रट लो, घोंट लो, और कुछ मत करो। मैं वो बता रहा हूँ, क्वेश्चन एज इट इज रिपीट हो जाते हैं, एज इट इज। आप पिछले इंजीनियरिंग सर्विसेज, कोई आदमी कितने क्वेश्चन बनाएगा? 120 इंटू 20, तो आपके 120 इंटू 20 के हिसाब से आप 2400 क्वेश्चन तो वैसे ही बना दिए। अब किसी के पास इस पूल से निकल के क्या कर लोगे? आप उसमें वैल्यू ही बदल सकते हो, न्यूमेरिकल होगा तो आप वैल्यू बदल दोगे, 0.3 की 0.6 कर दोगे, 0.5 की 0.8 कर लोगे, उससे ज्यादा क्या कर लोगे? क्योंकि उसके बाद उसको आंसर शीट भी बनानी है यार। देखो, सरकारी इंसान को क्वेश्चन पेपर भी बनाना है और उसको एक आंसर शीट भी बनानी है, ठीक है? तो वो ऐसे क्वेश्चन तो बनाएगा ही नहीं जिसका आंसर उसको ही नहीं आता होगा, ठीक है? और अगर उसको आंसर नहीं आता तो उसको करना पड़ेगा, और वो कंफर्म करने के लिए उसको कॉन्क्रीट चाहिए कि यार ये आंसर बिल्कुल सही है, क्योंकि आप तो खा जाओगे ना अगर मान लो आंसर गलत हो गया तो वो ऐसा ही क्वेश्चन पूछ सकता है विच इज एस्टैब्लिश्ड क्वेश्चन, विच इज एस्टैब्लिश्ड फैक्ट। ही कैन नॉट डिफाइन, और ही कैन नॉट रीडिफाइन अ क्वेश्चन, और ही कैन नॉट क्रिएट अ क्वेश्चन। आप भूल जाओ उस चीज को, ये सिर्फ गेट वाले करते हैं। उनके पास दुनिया भर का समय, सिर्फ 65 क्वेश्चन बनाने हैं उनको। अंग्रेजी, अब पैटर्न चेंज हो गया, आई डोंट नो, पर अंग्रेजी मैथ वैथ हटा दो, बहुत लिमिटेड क्वेश्चन बनाने हैं। अब वो लिमिटेड क्वेश्चन के लिए वो पूरी दिन रात एक साल आपका खा जाएंगे। वो एक साल तक वो सिर्फ 30 40 90 जो क्वेश्चन बनाने वही बनाएगा। क्वालिटी को 4 क्वेश्चन बनाने हैं तो उसके लिए वो 10 20 ऐसे क्वेश्चन बनाएगा जिसको आप सोच नहीं सकते। इंजीनियरिंग सर्विसेज में पूरा ही गेम अलग है, आपको ज्यादा ज्ञान लगाना ही नहीं है। प्रीवियस ईयर करो, रट लो। एक पेपर पे मैं जैसे क्वेश्चन करता था तो प्रीवियस ईयर करता था, जो नहीं आया, अगर वो फैक्ट है, सी इफ इट इज अ फैक्ट, जैसे एएसपी क्या है, देखो इंजीनियरिंग सर्विसेज को आप एएस से कंपेयर कर लो, कॉमन। एएसपी क्या है? आपको जो फैक्ट है वो फैक्ट है, रटना है। करंट अफेयर को छोड़ो, अब फैक्ट है वो फैक्ट आप रट लोगे कि अगर कन्याकुमारी यहाँ है तो कन्याकुमारी वहां है ही। सबसे लंबी ट्रेन अगर विवेक एक्सप्रेस हो तो विवेक एक्सप्रेस ही है, वो वहां से यहाँ जाएगी तो वो यहाँ से वहां ही जाएगी। अगर 82 पॉइंट पे अपना वो जो टाइम वाला जा रहा है तो वो वहीं से जाएगा, आप उसको नहीं बदल सकते। अब वो ऐसी क्वेश्चन पूछेगा तो वो, अगर जैसे मैं क्वेश्चन पेपर कर रहा हूँ मैकेनिकल में खासकर जैसे, या तो मैं अपना क्वेश्चन करने बैठा, न्यूमेरिकल है कर रहा हूँ, तो ऐसा फैक्ट वाला क्वेश्चन आ गया जो मुझे नहीं आता मान लीजिए, तो मैं उसको लिख लूंगा साइड में। एक बार लिखूंगा तो एक क्वेश्चन पेपर में एक पेपर ऐसा बन जाता था जिसमें मैंने कुछ फैक्ट वाले क्वेश्चन लिख लिए। अब मैं क्या करता था, दिन में एक बार वही फैक्ट वाले क्वेश्चन रट लेता था, फिर भी रट, मतलब दिन भर उसको एक बार याद करता था, दूसरे दिन याद करता था। और मैं आपको बताऊं, जैसे ही मैं अगला क्वेश्चन पेपर करता था, सी आपने फर्स्ट टाइम इंजीनियरिंग सर्विस का पूरा एक पेपर किया, आपके पास 3 पन्ने की फैक्ट शीट बन गई। आप दूसरा पेपर करके देखिए, अब जब दूसरा पेपर करेंगे तो हो सकता है वो जो 3 पन्ने ना वो आपके सिर्फ 2 ही पन्ने बनेंगे, क्योंकि वो 1 पन्ने के क्वेश्चन उसमें आ गए होंगे जो आपको रटे हुए होंगे। आप देखिएगा एट द एंड ऑफ द डे, आप जब 20 क्वेश्चन पेपर लगा चुके होंगे प्रीवियस ईयर के, तो आपकी जो फैक्ट शीट है वो सिमट के सिर्फ 1 पन्ने पे आ गई होगी, या उससे कम में, क्योंकि आधे से ज्यादा सब रट के रिपीट हो चुके होंगे, सिर्फ आपको रटने थे जो, उसमें सिर्फ वैल्यूज बदल जाएंगी। क्रोमियम निकल मॉलिब्डेनम वेंडेनियम, इसके अलावा रहेगा क्रोमियम सल्फर फॉस्फोरस वेंडेनियम। आपको पता है क्रोमियम आंसर रटो, खत्म करो, टिक करो, क्यों ज्ञान लगाना है उसमें? अगर वो स्टेबलाइजर है तो है। अगर आपको ZNS बनने वाला है और उससे हीट, जिंक सल्फर, सल्फर अगर उसमें चला गया मान लो मेटल में आपके, और मटेरियल साइंस, क्योंकि मैं मटेरियल साइंस इसलिए बता रहा हूँ, मटेरियल साइंस आपका स्कोरिंग सब्जेक्ट है, आपको उसमें ज्ञान तो कुछ लगाना नहीं है, इट इज टोटली फैक्ट बेस्ड। अब आयरन कार्बन कार्बन ऐसा क्यों होता है उसमें जाना ही नहीं मुझे, क्योंकि अगर आप वैसे चले गए, मैं आपको फैक्ट बता रहा हूँ, आयरन कार्बन आप वैसे चले गए कि ये ऐसा क्यों होता है, तो इस पे NPTEL में 13 से 14 एक घंटे के लेक्चर हैं, मतलब 14 घंटे। अगर आपकी इतनी श्रद्धा है कि 14 घंटे आप वो पूरा पढ़ने के बाद, जिसमें एंट्रोपी एंथैल्पी और 10 10 अलग चीजें हो चुकी होंगी, जिसके लिए आपको 10 अलग क्वेश्चन और 10 लेक्चर अलग देखने पड़ेंगे, तो आप मान लीजिए 22 घंटे का सब्जेक्ट है सिर्फ यही समझने में कि आयरन कार्बन ऐसे बिहेव क्यों करता है। और उसके बाद भी अगर मैं आपको गारंटी दे दूं कि आपको याद हो जाए कि वो ऐसा क्यों करता है, वो आप मेरे को एक्सप्लेन कर पाओ, तो आप भूल जाओ। इसलिए उस चीज में जाना ही नहीं है। ऐसा करता है तो ऐसा करता है, ये पूछा जाता है तो ये पूछा जाता है, इसमें ज्यादा ज्ञान लगाना नहीं है। ज्ञान लगाने के लिए आपके पास अगले जीवन के 4 साल, 4 10 साल आपके उस पढ़े हुए इंटरेस्ट हो, आप एमटेक कर लीजिए, जानिए एमटेक में जाके, यार मैं जब पढ़ रहा था आयरन कार्बन ऐसा क्यों बिहेव करता है, मैं जानना चाहता हूँ क्यों बिहेव कर रहा है, तब लीजिए ईगो पे। बट अभी नहीं है मौका। सो यू हैव टू स्कोर, यू हैव टू रटना इन इंजीनियरिंग सर्विसेज। रटो, स्कोर करो, मैक्सिमाइज स्कोर करो।
सीधा टिक टिक बिजनेस, जाओ पेपर पर घुट के एकदम रट के ठोकना चालू करो। न्यूमेरिकल पहले बार में छोड़ दो, हो रहा है तो पढ़ो करो, नहीं तो छोड़ो, क्योंकि न्यूमेरिकल टाइम लेगा। पहले फैक्ट वाले असर्शन रीजनिंग वाले जो होता है ना, ये होता तो ऐसा होता, ये नहीं है तो ऐसा नहीं है, वो सब कर डालो, उसके बाद आओ न्यूमेरिकल पे, जो इजी इजी है वो कर डालो, जो सिंगल फॉर्मूले में रहते हैं, ठीक है। और उसके बाद अब कहीं श्रद्धा बच जाए, आपको लगा कि मैंने सब कुछ कर लिया है अब इसके बाद भी मैं शायद कुछ कर सकता हूं, तो पहले अच्छे से ओएमआर भर लेना। क्योंकि जब लड़के रात में सोचते हैं ना मैं ओएमआर 10 मिनट में भरता हूँ, बहुत बड़ा कांड होता है। एक गलती आपको बता रहा हूँ, एक बार ऐसा हुआ था, एक ने सिर्फ यही गलती कर दी कि वो जल्दी में उसका सीरियल नंबर ओएमआर में उल्टा हो गया। वो कई बार जैसे सीरियल नंबर छुपा के, मतलब ओएमआर ऐसे भर रहा है 25 23 24, मतलब 21 22 23 24 25 भर रहा है, और वो क्या होता है, अपने आंसर शीट आप ऐसे बगल में रखते हो और आप ओएमआर धड़ाधड़ भरते हो। जल्दबाजी में 21 का आपका ओएमआर भरना चालू हो गया 22वें से, ठीक है। आप भर रहे थे तो 21 का, आपको भरना था 21 का, आप जल्दबाजी में जब आप पेज पलटते जा रहे, हाँ यार 22, फिर वहां 22 से, उस फ्लो में आप कभी देखते ही नहीं हो कि आप 24 के बगल में 22 का आंसर भर रहे हो कि 23 के बगल में 22 का भर रहे हो। आपका एक भी स्लैप पीछे खिसका, तो मैं आपको बता रहा हूं, आपको ये चीज कब ध्यान आएगी, आपको मान लो 10 क्वेश्चन बाद ध्यान आई एग्जाम्पल के लिए, अरे यार हाँ मैं तो एक एक नंबर ज्यादा पढ़ रहा हूँ, मतलब मैं 22 का आंसर 23 में भर रहा था, 23 का 24 में भर रहा था, 24 का 25 में भर रहा था। ये फैक्ट आपको मान लो 10 सेकंड बाद भी पता चला, मैं आपको बोल रहा हूँ 10 सेकंड, मैं आपको सेकंड्स का खेल बता रहा हूँ। आपको 10 सेकंड बाद पता चला कि मैंने ये उल्टा सीधा कर दिया ओएमआर भरने में, और आपकी स्पीड अगर 1 सेकंड में आप एक गोला भर रहे थे, 10 सेकंड में आप 10 गोले भर चुके होगे, और बहुत आलसी हो गए तो आप 5 6 से 6 गोले भर चुके होगे। पर आप गोले को अब रिवर्ट नहीं कर सकते, फंस गए हो वहां। आप जो 6 गोले भर चुके हो वो भर चुके हो, अब वो गए आपके मान लो, तो अब आप रिग्रेट में फंस जाओगे। अरे यार अब वो जो टेंशन बढ़ेगी ना, या वो 10 गोले तो 6 गोले गलत भर गए, और वो 6 गोले के चक्कर में जो आपके बाकी जो 10 20 सही आप कर सकते थे वो भी आपके गए। तो ये जो कंसेप्ट है ना ओएमआर, हम बिल्कुल लास्ट में एकदम प्रो होके एकदम भर देंगे, हमें तो एक्सपर्टीज है, भूल जाइए। पेपर में ना कोई एक्सपर्टीज दिखानी है, ना कोई प्रो तरीका दिखाना है, ना कोई बॉन्ड बनने की जरूरत है, जो हो वो बन के रहो, और वो क्वेश्चन में तरीके से करो, तो आपको पेपर निकल जाए। एक बार पेपर निकल जाए, ऑल इंडिया रैंक 10 के अंदर 20 या 50 के अंदर आ जाना, तो जितना बॉन्ड बनना है बन लेना कि हम तो साहब ये करते थे, हम वैसा करते थे, हम दिन में 20 घंटे पढ़ते थे, हम तो सोने भी नहीं जाते थे, और सोते सोते सपने में भी हमारे उसे न्यूमेरिकल आते थे। फिर दुनिया को जो फेंकना फेंको, दुनिया सब मान लेगी, बिकॉज यू हैव अ रैंक विद यू। आज की डेट में मैं आपको जो भी बोलूंगा ना, आपको लगेगा हाँ शायद ये हो सकता होगा, और मैं हो सकता है उसमें से आधी चीजें नहीं भी करता हूँ, लेकिन आपके पास उस वक्त बेस है बोलने के लिए। जब आपके पास कोई बेस ही नहीं है, आप उस वक्त क्यों एक्सपेरिमेंट करने में लगे हो? आपको एक्सपेरिमेंट करना ही नहीं है, आप सिंपली पढ़ो, करो और आंसर लाओ। तो दिस इज ऑल अबाउट द स्ट्रेटेजी ऑफ डूइंग द थिंग्स। अब जो चीज है, आप एक बार कर लिए, सब कुछ हो गया, तो इससे ज्यादा वो क्या चाहिए आपको? रैंक आ गई, उसके बाद आपको जो करना है करो यार, फिर कोई नहीं पूछने वाला, फिर आपकी लाइफ है, आप जानो। गेट करना है गेट करो, एमटेक करनी है एमटेक करो, इंजीनियरिंग सर्विसेज कर लिया तो जैसा आपकी लाइफ के साथ आपको खेलना है फिर खेलो, बट पहले उस लायक रैंक लाओ, उस लायक आपके पास बेस हो। सी एक बहुत अच्छी बात कोई बोलता है कि तो शांति की उम्मीद है ना, वो सिर्फ ताकतवर करता है। इफ यू वांट पीस देन बी पावरफुल। सो अगर आपको ज्ञान देना है, जैसे आज मैं अगर फेंक रहा हूँ, आपको ज्ञान देना है, तो उस लायक आप पहले लेके आ जाओ। तो ऑल अबाउट इज दिस कंसेप्ट ऑफ कि अगर मुझे ये चीज करनी है तो अभी कर लीजिए, उसके बाद व्हेन यू हैव द बेस ऑफ रैंक, व्हेन यू हैव अचीव समथिंग, देन यू कैन डू एनीथिंग, देन देयर इज अ कॉन्फिडेंस व्हिच स्पीक्स। आप नहीं बोल रहे हो, आपके अंदर का कॉन्फिडेंस होता अलग ही लेवल का, मतलब अरे मैं हूँ भैया, वो रोहित राजपूत, वो रोहित राजपूत नहीं होगा, फिर रोहित राजपूत कोई दूसरा रोहित राजपूत होगा। आज की डेट में मैं कुछ भी एक्सपेरिमेंट करूँ, मैं अपना यूट्यूब चैनल चलाता हूँ, मेरे को मेरी मर्जी, मैं चलाऊंगा, कुछ भी करता हूँ, मैं कहीं घूमने जाता हूँ, मैं कर सकता हूँ, बट अगर मेरे पास कुछ नहीं है तो मैं कुछ नहीं कर सकता। तो आपको ये समझना होगा, इफ यू हैव टू अचीव इन लाइफ, बी वेरी प्रैक्टिकल, बी वेरी प्रैक्टिकल, डोंट फॉल इन द ट्रैप ऑफ अटेम्प्टिंग मोर, गेट अ बेटर गाइडेंस। कोई अच्छे गाइडेंस का मतलब मैं ये कहता हूँ, कोई फैकल्टी जो आपको बेटर गाइड कर सके कंसेप्ट पे, सिलेबस पे और प्रिपरेशन पे, ठीक है। तो ये बहुत जरूरी है लाइफ में। तो अब कई बार जो क्वेश्चन एक और बहुत होता है कि फैकल्टी कौन सी होनी चाहिए,
ये कोचिंग कौन सी होनी चाहिए, वो कोचिंग कौन सी होनी चाहिए। मैं आपको एक बात बताऊं, अब विद दिस यूट्यूब और विद दिस ऑनलाइन कोचिंग, मैं आपको ये बताऊं कि कई लड़के परेशान हैं, कई लोग परेशान मतलब खुद कंफ्यूज हो रहे हैं। क्या होता है, आपको विश्वास करना पड़ेगा फैकल्टी पे। सी, आप किसी फैकल्टी को जज मत करिए फर्स्ट ऑफ ऑल थिंग, चाहे कोई भी हो। मैं आपको ये बताऊं, किसी भी फैकल्टी को आप ये जज मत करिए कि यार वो फैकल्टी अच्छी है बुरी है, वो पढ़ा पाएगा नहीं पढ़ाएगा, इट इज इमटेरियल। आपको एक गाइडेंस जो एक अच्छी फैकल्टी दे सकती है ना, वो कोई भी होगा वो आपको दे देगा। सचिन तेंदुलकर मे बी द बेस्ट बैट्समैन इन द वर्ल्ड, ही मे नॉट बी द बेस्ट कोच इन द वर्ल्ड। सी, द कैपेबिलिटी ऑफ अ पर्सन इज नॉट बाय हिज रैंक, जो आपको पढ़ा रहा है। किसी का मन ही है पढ़ाने में, और किसी का मान लो सिर्फ पैसा कमाने में। तो कोई पैसे के लिए आपको पढ़ा रहा है, तो पैसे के लिए पढ़ा रहा है तो उसका तो सिर्फ टाइम काटना है कि भैया मेरे को 1 घंटे के लिए इतना मिलता है, तो मैं 1 घंटे में आपको जो फेंक के चले जाऊं। अब उसने जो फेंका, अपने लब का वोट खत्म हो गई। किसी का मन है आपको पढ़ाने का, मान लो किसी का बहुत ही मन है आपको पढ़ाने का, तो वो आपको हो सकता है एक्स्ट्रा ही देगा, क्योंकि उसका मन आपको पढ़ाने में है, ना कि कमाने में है। कई कोचिंग्स होती हैं आपके पास, दुनिया भर की कोचिंग है, पर आपको जो चाहिए वो कोचिंग। मैंने कोचिंग करी, ठीक है, तो मैं मानता हूँ कोचिंग तो मुझे सिर्फ दिशा निर्देश मिली। मैं क्या फैकल्टी का चेहरा देख के फैकल्टी मेरे साथ थोड़ी पेपर देने बैठी हूँ। वो तो उस एग्जाम में सिर्फ मैं ही हूँ जिसको क्वेश्चन करना है, या जो उसको मेरे को क्वेश्चन पेपर करके मुझे ही आंसर करना है। कोई भी अच्छी फैकल्टी आपको गाइड करेगी सिलेबस पे, कंसेप्ट पे, और आपको कैसे पेपर अटेम्प्ट करना है, इतना ही कर सकती है। और आप अगर उस भ्रम में फंस गए, अरे ये फैकल्टी वैसी है, ये फैकल्टी होगी, या मैं उससे पढ़ूंगा तो ही मैं निकलेगा, ये सब भूल जाइए। ये सब चीजें इमटेरियल है। आपकी वो होगा तो ही होगा, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो इस चीज को आप भूल जाइए कि उसका मैं आपको बेस्ट एग्जांपल बता रहा हूँ ना, कि आप सचिन तेंदुलकर से उम्मीद नहीं कर सकते कि इंडियन टीम का कोच बने। रवि शास्त्री, आप देखिए ना एग्जांपल के, रवि शास्त्री आज की डेट में आप बोलेंगे क्या फैकल्टी, मतलब क्या कोच है। ही वॉज नॉट अ ग्रेट प्लेयर, बट ही माइट बी द वेरी बेस्ट कोच। ही माइट बी गिविंग यू दोज थिंग्स। आपको क्या चाहिए, कॉन्फिडेंस चाहिए। आपकी जब लो होगा ना, जब आपका लो टाइम कब आता है, जब लो टाइम आता है जब आप ऑल इंडिया रैंक्स में बैठते हो, ऑल इंडिया सीरीज दे रहे होते हो, और होता है कि आपकी ऑल इंडिया रैंक 10,000 में आ रही होती है, ऑल इंडिया रैंक 5,000 में आ रही होती है, तब आपको लगता है कि यार जिंदगी में सब खत्म होने लगा है। तब आपकी फैकल्टी जो होती है वो जो आपके साथ खड़ा है कि नहीं यार, शायद तू आज 5,000 ला रहा है, ये तेरी गलतियां हैं, ये तेरी गलती है। तो ही इज द पर्सन हु फाइंड्स द फॉल्ट इन यू। और तब आप सोचते हैं कि यार हाँ यार, ये तो सही कह रहे हैं सर। तो आप कभी किसी क्षमता में मत जाइए कि वो फैकल्टी की AIR 5 थी, या अरे मैं मेरी फैकल्टी है उसकी AIR 200 है, और एक लड़का बोलता है सर मेरी फैकल्टी है जिसकी AIR 6 है। दैट डजंट मीन कि 6 वाला आपको कुछ ऐसा घुट्टी पिलाने वाला है जिससे कि आप वहां पर ऑल इंडिया रैंक 6 लाओगे, ऐसा नहीं है। भूल जाइए। आप किसी भी बड़ी कोचिंग को उठा लीजिए, उसके स्टूडेंट AIR 1 भी ला रहे होंगे, उसके स्टूडेंट गेट क्वालिफाई भी नहीं कर पा रहे होंगे। तो द डिफरेंस इज, फैकल्टी तो वही थी ना भाई, टीचर तो वही था, तो बदला क्या, बदला था स्टूडेंट। भाई जिसने पढ़ना था वो चाहे 1 नंबर से पढ़ ले या 6 नंबर से पढ़ ले, पढ़ना उसको है। और अभी क्या होता है कि हम सबसे बड़ा टाइम वेस्ट अभी क्या कर रहे हैं स्टूडेंट्स, जो मुझे पर्सनली फील होता है, क्योंकि मेरा भाई भी आजकल ऑनलाइन कोचिंग कर रहा है। अब क्या कर सकते हैं कि आप सोचते हैं कि यार मैं एग्जांपल मैकेनिकल के लिए, थर्मोडायनेमिक्स में आप सोचेंगे मैं थर्मोडायनेमिक्स, क्योंकि आजकल सब ऑनलाइन है, कि मैं थर्मोडायनेमिक्स यार इस फैकल्टी का पहले पढ़ लेता हूँ, ये ऐप से पढ़ लेता हूँ। ठीक है, पढ़ लीजिए। आपने 1 1.5 घंटा 4 घंटा पढ़ लिए, यार इसमें मजा नहीं आया, इसी कंसेप्ट को मैं दूसरी फैकल्टी से पढ़ के एक बार देख लेता हूँ कि कैसा पढ़ाती है। तो आप फिर 4 घंटे लगाएंगे उसी कंसेप्ट के लिए, तो किसी दूसरी फैकल्टी के लिए। फिर आप कंपेयर करेंगे, नहीं यार शायद पहले वाली बेहतर थी यार, तो उसी से पढ़ लेता हूँ। तो होगा क्या, आपके अंदर शक हुआ, तो शक में आप वो दूसरी फैकल्टी के 4 घंटे बर्बाद किए। फिर आपको कई तो ऐसे भी होंगे कि नहीं यार यही कंसेप्ट के लिए मैं क्या करता हूँ, पूरा वीडियो एक बार देख लेता हूँ उस फैकल्टी का, ही इज वेरी बेस्ट, उसके व्यूज बहुत ज्यादा है, उसी का मैं देख लेता हूँ, उसमें शायद वो कंसेप्ट अच्छा समझ में आ जाए। आप उस कंसेप्ट के लिए क्या होगा ना, एक दिन पूरा वेस्ट कर चुके होंगे, जिसमें आपको सिर्फ लगाने से 3 से 4 घंटे, आप एक दिन पूरा वेस्ट करेंगे यूट्यूब पे सर्च कर करके, और उस पर सिर्फ व्यूज और नीचे के कमेंट पढ़ पढ़ के यार ये फैकल्टी अच्छी है क्या नहीं है। आप किसी फैकल्टी या किसी कोचिंग को उसके व्यूज और उसके कमेंट से रेट मत करिए। आप कमेंट में पढ़ेंगे अरे यार ये अच्छा पढ़ाई की नहीं है, वाह सर आप ग्रेट हैं, सर आपने ये किया। इट इज इमेटेरियल। आपके सर चाहे कितने भी ग्रेट हों, आपको पेपर देना है। आप दिन में अगर सिर्फ इस सॉर्टिंग में, उस कंसेप्ट के या उस सब्जेक्ट की सॉर्टिंग में आप अगर दिन के 1 दिन लगा देंगे, तो आप ये समझिए व्हाट यू आर लूजिंग।
मैंने आपको बताया आपको करना क्या था, आपको करने न्यूमेरिकल थे, आपको करनी प्रैक्टिस थी, पर आपने क्या किया, आप वो कंसेप्ट के लिए स्क्रीन के सामने बैठे रहे। फिर वो व्हाट्सएप भी चलाएंगे आप, फिर वो देखेंगे कि यार वो रिव्यूज किसके अच्छा आ रहे हैं, फिर आप ऐसे ही देखते रहेंगे। फिर वो पहले 4 घंटे में नहीं समझ में आया, क्योंकि उसको कभी नहीं समझ में आना, मैं आपको बता रहा हूँ, जिसको वो 4 घंटे में नहीं समझ में आया ना, वो कभी उसको समझ में नहीं आएगा। फिर वो कंपेयर के लिए दूसरे फैकल्टी देखेगा, फिर तीसरी को देखेगा, फिर बोलेगा हाँ अब शायद यही अच्छी है। सो दिस विल डाइवर्ज योर माइंड, आप स्टिक हो जाइए। कोई भी कोचिंग ज्वाइन कर लीजिए, कोई भी फैकल्टी से आप पढ़ लीजिए, पर आप उस पर फेथ रखिए। आप डॉक्टर जैसा होता है ना, आप इसको मानिए एक डॉक्टर है। लाइक आप किसी यहाँ इलाज कराने जाते हैं ना, तो आप हॉस्पिटल के बीच में कभी कंपेयर करके देखा है आपने किसी को कि मैं अपोलो से कराऊंगा, मैक्स में कराऊंगा, कि मैं यार नहीं मेदांता में कराऊंगा? तो मेदांता तो 80,000 भी 80 लाख भी लेता है, अपोलो तो 10 लाख ले रहा होगा, मैक्स 15 ले रहा होगा। फिर आप सोचेंगे नहीं यार जहाँ पैसे कम है वहीं करवा लेता हूँ। तब जब वहाँ पैसे कम है वहां आप करवाते हैं, तो फिर आपके डॉक्टर को फिर से सेलेक्ट करते हैं, नहीं यार शायद जो डॉक्टर मेदांता वाला था यार वो अच्छा होगा। फिर आपको एक दिन पता चलता है कि जो मेदांता वाला डॉक्टर है वो मेदांता में भी जाता है, अपोलो में भी जाता है, मैक्स में जाता है। डॉक्टर वही है, हर जगह जाता है, ज्ञान उतना ही है। फिर आप बोले नहीं यार फिर तो यही सही था। तो दिस इज व्हाट द कोचिंग इज। आप किसी के ऊपर भी पढ़िए पर फेथ करिए। आप भूल जाइए कि मैं उसी से पढ़ूंगा तो मैं AIR 1 लाऊंगा, भूल जाइए। ऐसा कुछ नहीं होता, कभी नहीं होता। अगर मैं आपको बता रहा हूं, मैं बिना पढ़े अगर रैंक ले आया था 74, क्योंकि मैं तब थोड़ा सेल्फ मोटिवेट हो गया, क्योंकि बिल्कुल लो में था, तो मैं सेल्फ मोटिवेट होकर ले आया। बट अगर आप भी अपनी लाइफ में ऐसे लो हो रहे हैं, किसी का नहीं है पैसा, आप क्या सोच रहे हैं फैकल्टी इतना महंगा, मतलब ये जो बिजनेस है, कोचिंग बिजनेस इतना सस्ता है, आपके पास नहीं है पैसा, किसी के पास इंटरनेट सर्विस ही नहीं है, मान लो गाँव में हो आप, कहीं हो, आपको जो पढ़ने के लिए मिल रहा है वो पढ़ लीजिए। आपके पास पैसा नहीं है, आप इतनी बड़ी बड़ी फैकल्टी में के चक्कर में वहां घूम रहे हैं, और होगा क्या, आप रिग्रेट करेंगे। आप सोचेंगे अरे यार मैं फालतू में पैसे लगा दिए, उससे अच्छा तो मैं साला यूट्यूब पे उतना पढ़ के प्रैक्टिस कर लेता। मैं अभी भी आपको बोल रहा हूँ, आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे, जितना प्रीवियस ईयर करेंगे, जितना एक फैकल्टी या एक कोचिंग के चक्कर में आप स्टिक हो जाइए, आप इधर उधर भागे ही मत। ठीक है? हाँ ठीक है, आपको लगता है यार ये कुछ एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, मैं रेफरेंस करना चाहता हूँ, रेफरेंस बुक्स में भी दे, जस्ट लाइक बुक। कॉलेज की एक बुक होती है पास करने के लिए एग्जाम, एक एग्जाम के लिए एक बुक होती है, उसी में से क्वेश्चन आने होता है, वो पढ़िए। हाँ रेफरेंस के लिए आप वही अच्छी मोदी एंड सेठ भी पढ़ लीजिए, और मैग्रॉ हिल की भी कोई पढ़ लीजिए, वो तो आपकी चाहत, उतनी महंगी किताब आती है, आपकी चाहत है आप पढ़ लीजिए। लेकिन आप स्टिक हो जाइए कि यार मैं करूंगा तो इससे, क्योंकि इंडियन तो यही है, इसी में से क्वेश्चन आने वाले, चाहे फॉरेन ऑथर आप कितना भी पढ़ लीजिए। सो बी वेरी स्पेसिफिक, मेक योर एम, मेक योर गोल, स्टिक टू दैट, एंड दैट फॉलो योर ड्रीम, दैट्स इट। मतलब इसमें ज्यादा इधर उधर भागने की जरूरत ही नहीं है। ना आप ऑनलाइन के चक्कर में मत भागिए कि मैं वहां जाऊंगा, मैं वहां पढ़ूंगा, दिन के 4 सुबह 6 बजे उठ के यहाँ से पढ़ूंगा, फिर मैं सेकंड क्लास वहां से करूंगा, और दिन में आपने कुछ नहीं किया, दिन में आपने 10 क्वेश्चन भी नहीं लगाए। आई एम वेरी हैप्पी इफ कोई दिन में 50 क्वेश्चन लगाता है और उसमें 10 डाउट लाता है, कोई दिक्कत नहीं है। आप 10 डाउट जब दोबारा करेंगे तो वो 10 डाउट आपके कंसेप्ट बन चुके होंगे, और वो कभी आपके गलत नहीं होंगे। पर आप पूरे दिन में सिर्फ थियरी पढ़ते रहे स्क्रीन के सामने बैठे बैठे, और आंख ऐसी दर्द हो जाए, उसके बाद आप शाम को जाकर सोचेंगे यार मैं 5 क्वेश्चन कर लूंगा, जिसमें वो भी नहीं होंगे आपसे, क्योंकि आप वो करने बैठेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, यार उसने तो ये बताया था, उसने तो ये बताया था, उसके मेथड से करूं कि इसके मेथड से करूं, तो आप कंफ्यूज रहेंगे। आपको स्टिक होना पड़ेगा सिंगल पे, आप पॉइंट ब्लैंक वहां पढ़िए, खत्म करिए। आई थिंक दिस इज द बेस्ट वे टू गेट इनटू एनी एग्जाम। बहुत ही शानदार तरीके से आपने बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया कि ईएस की क्या स्ट्रैटेजी है, गेट स्ट्रैटेजी है, और हमें कैसे पढ़ाई करनी चाहिए। आई फील कि हमारे सारे जो स्टूडेंट्स हैं जो ज्वाइन किए उनके थ्रू और लाइव जो देख रहे हैं वो बहुत ही मोटिवेट हुए होंगे। और अभी बहुत सारे गए हैं लाइव चैट में, और यहाँ पे भी स्टूडेंट्स के बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे। तो अंकुश सर, कैरी ऑन विद द क्वेश्चन आंसर सेशन। अंकुश सर, आपका माइक म्यूटेड है। हाँ हेलो, एम आई ऑडिबल? हाँ रोहित। जी सर। हाँ हाँ। आई एम वेरी हैप्पी कि रोहित इज फ्रॉम माई माई बैचमेट, कि 4 साल मैंने इसी के साथ हॉस्टल में निकाले हैं, और आज इसी का इंटरव्यू लेने का मौका मिला, तो मुझे बहुत खुशी हो रही है इस बात की। तो अब कुछ स्टूडेंट्स का डाउट है, जैसे चैट में भी है कि सर जैसे सेकेंड ईयर कॉलेज के साथ हम प्रिपरेशन कैसे करें, जैसे रोहित राजपूत ने कॉलेज के साथ आईएएस में 74 रैंक लाई है, तो कुछ स्टूडेंट पूछ रहे हैं कि सर
कॉलेज की तैयारी करनी होती है, यूनिवर्सिटी एग्जाम भी देनी होती है, साथ साथ में हम गेट और आईएएस के एग्जाम कैसे क्वालिफाई करें, तैयारी कैसे रखें? इसमें बहुत बेसिक सा फंडा है। देखिए, कॉलेज की तैयारी आप 2 दिन पहले करते हैं तो उसके लिए आप भूल जाइए कि कॉलेज की तैयारी के लिए आपको कौन सा 1 महीना चाहिए। कोई 1 महीना नहीं पड़ता है। कॉलेज की तैयारी आप 1 हफ्ते में पढ़ के करेंगे, क्योंकि आपको एग्जाम डेट पता होती है। 1 महीने पहले आपको रात को पढ़ना है और वो पेपर दे के आना है। उसका गेम ही अलग है। उसको तो आपको फिक्स फर्रे होते हैं या जो फिक्स नोट हैं या फिक्स बुक्स हैं वो आप पढ़िए और जाके पेपर दे आइए। रही बात गेट की और इंजीनियरिंग सर्विसेज की, आप बिल्कुल कर सकते हैं। और मैं एग्जांपल कोट करूंगा, मेरे एक वेरी मतलब एक सीनियर हैं और मैं आपको बताऊं, मतलब ऐसा है कि वो मेरे सीनियर भी हैं और मेरे साथ इस वक्त मेरे यहाँ बॉम्बे में मेरे साथ कलीग भी हैं। एक रघुवीर सिंह देवड़ा साहब हैं, वो हमारे साथ इंजीनियरिंग कॉलेज में थे एंड ही वाज ही इज माय आइडल। वो कॉलेज से बता रहा हूँ, कॉलेज पे बैठे बैठे यही यार 10 ले आए थे। ठीक है, और आदमी कॉलेज में उसने कुछ नहीं किया, वो कॉलेज में बैठा था, पढ़ता था। और आपको बिलीव नहीं करेंगे, जिस दिन उसका गेट का एग्जाम था, कल उसका कैलकुलेटर खराब था। उसने मेरे को बोला यार कैलकुलेटर चाहिए। अब आप ये सोच लीजिए, किसी व्यक्ति का रात को कैलकुलेटर खराब है और अगला दिन गेट है। मतलब ये ऐसा ही है कि जैसे आपकी गन खराब हो गई और आपको कल ओलंपिक खेलने जाना है। तो मैंने बोला यार मैं दे देता हूँ, मेरा मेरा कैलकुलेटर देके आओ। मेरे कैलकुलेटर से वो यार 10 लेके आ गए थे। सो सी, स्किल इज वेरी डिफरेंट। स्किल किसी के पास है ना तो वो कोई फर्क नहीं पड़ता उसको। उसने प्रैक्टिस ही इतनी करी, उस बंदे ने इतनी झोंक दिया था कि उसको कोई फर्क नहीं पड़ा। तो आप रहे एग्जाम इंजीनियरिंग कॉलेजेस के, तो कॉलेजेस में आपको देखिए, अगर आपको बोर्ड पे नाम लाना है, आपको मेरिटिस्ट बनना है, तो वो बात अलग है। आप उसके लिए मेहनत करिए, उसमें कोई वो नहीं है। बट गेट और इंजीनियरिंग सर्विसेज करना है तो आपको उसके लिए स्ट्रैटेजी सिंपल है। प्रैक्टिस करते रहिए उसके टाइप के क्वेश्चन के, दिन में 2 घंटा 4 घंटा, जब भी एग्जाम से पहले ज्यादा प्रैक्टिस करिए बस। क्योंकि क्या होता है, एग्जाम आप पूरे साल भर करेंगे, वो एंड में आप भूल जाएंगे। तो ऐसा भी नहीं है। और अच्छा, इंजीनियरिंग की जब आप जब इंजीनियरिंग कॉलेज में अपने कोर्स की तैयारी कर रहे हैं तो दैट इज ऑल्सो बेनिफिशियल। ऐसा तो है नहीं कि वो भी नहीं आने वाला। आप उसकी तैयारी करते करते न्यूमेरिकल लगा लीजिए ना, आप कंसेप्ट उसके पढ़ लीजिए जिसमें आपको पूरा लिखना है। और मैं बताऊं, इसमें भी ये फायदा ये है कि अगर आप कॉलेज के एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आप कन्वेंशनल की बहुत अच्छी तैयारी कर लेते हैं। जैसे मैं अपने कॉलेज की तैयारी करता था एग्जाम की, तो मैं उस बहाने क्या करता था, कन्वेंशनल की तैयारी करता था। क्योंकि कन्वेंशनल में आपको लिखना होता है। अगर आपके पास लिखने की आदत नहीं है तो आप कन्वेंशनल नहीं कर पाएंगे। आपको न्यूमेरिकल करने हैं बड़े बड़े, आपको डिराइव करने हैं, आपको कन्वेंशनल में पूरा अंग्रेजी लिखनी है। वो तो बोलेगा कि बताइए कि एंट्रोपी एंथैल्पी का डिफरेंस बताइए, या कि किसी की पावर साइकिल के बारे में आप पूरा बता दिए। तो वो तो थियरी है ना भाई, वो तो आपको कॉलेज से ही पता चलेगी। तो आप जब कॉलेज की थियरी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आप अपने कन्वेंशनल की तैयारी कर लो, और एग्जाम जब खत्म हो जाए तो आप न्यूमेरिकल लगाओ, मतलब ऑब्जेक्टिव की तैयारी करो। तो बेसिकली आप उस विंडो को पकड़ लो कि जब भी मेरे कॉलेज के एग्जाम होंगे तो मैं अपने कन्वेंशनल प्रिपेयर कर लूंगा उस बहाने। ठीक है, और कन्वेंशनल पेपर हो गए तो फिर आपका क्या कहना है, मतलब आप कन्वेंशनल पेपर होगा तो आप इंजीनियरिंग सर्विसेज में फोड़ देंगे, क्योंकि कन्वेंशनल में लोगों के नंबर कम आते हैं, लिखने की आदत नहीं है। ठीक है। और अच्छा, कई बार ऐसा होता है कि इंजीनियरिंग कॉलेज में मैं एक और कंसेप्ट बता दूं, किसी को ये डाउट है कि मेरा इंजीनियरिंग कॉलेज इतना रेप्यूटेड नहीं है, मेरे इंजीनियरिंग कॉलेज में ये व्यवस्था नहीं है, मेरा इंजीनियरिंग कॉलेज ऐसा है, मेरे को आईआईटी नहीं मिला, मेरी IIEEE रैंक, ये तो भूल जाइए। मैं बता रहा हूँ, मेरे साथ के बंदे हैं, मतलब उनको रियली सल्यूट करता हूँ। मेरा एक फ्रेंड है, AIR1 है। वो एक ऐसे इंजीनियरिंग कॉलेज है जिसका नाम मैंने आज तक नहीं सुना था, और दिल्ली में भी आधों ने नहीं सुना। ठीक है, बट ही इज AIR1 और उसने फोड़ा। तो इन सबको भूल जाइए कि ये मैटर करेगा। इट्स ऑलवेज यू, मतलब it's not about engineering college, it's not about faculty, it's not about anything else, it is about you। आप इसको कैसे परसीव करते हैं। अच्छे कॉलेजेस आपको अच्छा एनवायरनमेंट देगा, अच्छी किताबें दे देगी, अच्छी लाइब्रेरी दे देगा, अच्छी लैब दे देगा, पर आपको वो समय नहीं देगा, क्योंकि वो दिन भर आपको घिसाएगा। और एक फर्जी सा इंजीनियरिंग कॉलेज आपको सबसे अच्छी चीज दे देगा, समय। वहां कुछ नहीं करना, आपको पूरा दिन पढ़ता रहो, गेट की तैयारी करते रहो, कौन पूछने वाला है। जो आप कोटा में करते थे IIT के लिए, वही कर लो, क्या बुराई है। जब एट द एंड ऑफ द डे आपको मिलना कोई अच्छी नौकरी है या IIT में जाना वैसे ही है, तो आप वैसे कर लीजिए, क्या फर्क पड़ेगा। एक वैभव जैन का क्वेश्चन है कि टॉपिक को रिवाइज कैसे करें और पढ़ाई की कंटिन्यूटी कैसे रखें? टॉपिक को रिवाइज करने का तरीका है, लिखने की आदत डालें। आजकल जो IT का जमाना है कि यार नोट्स रख लिए, व्हाट्सएप रख लिए, भूल जाइए। मैं मानता हूँ कि आप फिर से रेट्रोस्पेक्टिव, मतलब पुराने जोन में चले जाइए। मोबाइल व्हाट्सएप पे नहीं होगा। क्यों, प्रॉब्लम क्या है। इवन मैं गवर्नमेंट जॉब में भी देखता हूँ, आप किसी चीज का लेटर व्हाट्सएप पे भेज देते हैं, कभी प्रिंट तो करके रखते नहीं है, और वो व्हाट्सएप पे पड़ा रहता है, ढूंढता रहो उसको, फिर आपको जब याद आती है तो वो ढूंढना पड़ता है।
आप किसी भी सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हैं कॉपी बना के रखिए, उसमें अपना कंसेप्ट लिखते रहिए, जो क्वेश्चन नहीं आया वो आप लिख लीजिए, आपने प्रैक्टिस कर लीजिए, आइटम्स लिख लीजिए, तो वो एक कॉपी आपकी बनती रहा, उसको आप दिन में एक बार रिवाइज कर लीजिए। जैसे सुबह उठे या शाम को सोने से पहले कोई एक अच्छा कंसेप्ट की कॉपी, एक कॉपी रिवाइज कर ली। ऐसी रिवाइज करने का मतलब क्या है, ऐसा नहीं कि एक एक लाइन पढ़नी है, नहीं, उसमें लाल हरा नीला पीला जो मार्कर आप यूज करना चाहे वो लगा लीजिए, उतना देख लीजिए कि वो निगाह में रहे। हाँ, कि आपको नींद से भी कोई उठा दे कि यार वो क्या होता है, तो वो आपको, हाँ यार ये ऐसा होता है, वो 1 माइनस ये होता है, 1 प्लस ये, जो भी आपको फॉर्मूला है वो रटा रहेगा। सो इट्स लाइक कि आप कंसेप्ट की कॉपी बनाइए, लिखने की आदत डालिए, लिखते रहिए, लिखने की आदत से दूर मत होइए, लिखते रहिए, जितना आप लिखेंगे, जितना पेन घिसेंगे उतना फायदा है। तो दैट्स द बेस्ट थिंग, लिखिए। हाँ यश बेटा, आपका क्या क्वेश्चन है? एक स्टूडेंट अपना यश, पूछिए बेटा। हाँ सर, मेरा क्वेश्चन है कि सर जैसे गेट की तैयारी अभी 6 मंथ बाद अभी आईटी खड़गपुर कर रही है, तो उसकी स्ट्रेटेजी कैसी होनी चाहिए गेट के लिए सर? स्ट्रेटेजी बहुत सिंपल सी है, आपको पहले सिलेबस उठा के बैठ जाना है। अगर आप किसी कोचिंग के थ्रू हैं तो वो टेक केयर करती है उस चीज़ का, अगर आप सेल्फ कर रहे हैं तो आप कोचिंग नहीं है तो आप किसी का मटेरियल ले लीजिए, जो मेरा मानना है, या किसी को बैकहैंड में ज्वाइन कर लीजिए, जिससे ये होता है कि आपको थोड़ा गाइडेंस मिल जाएगी। होगा क्या, मैंने जैसे फर्स्ट ईयर में बता रहा हूँ, जब मैंने पहली बार दिया तो मैं सब घूमता रहा कि क्या करना है क्या करना है, ये भी कर लेता हूँ, जो मुझे ईजी लगता था मैं वो ज्यादा करता था, जो मुझे डिफिकल्ट लगता था वो मैं करता नहीं था, क्योंकि उसमें तो आलस आता है करने में। इसलिए आपको करना तो सब पड़ेगा, क्योंकि नंबर तो उसके भी जुड़ने वाले हैं, हो सकता है जो मुझे नहीं आता उसमें इजी नंबर मिल जाए। तो इसलिए आप किसी को ज्वाइन कर लीजिए और प्रैक्टिस करते रहिए। मतलब आप उसका एक बना लीजिए टाइमलाइन कि यार मैं ये सब्जेक्ट को पहले वाइंड अप करूंगा 10 दिन में, 15 दिन में पूरा समय लूंगा और पूरा ढंग से करूंगा, फिर इसको 10-15 दिन में करूंगा, फिर इसको 8-10 दिन में करूंगा और प्रैक्टिस करूंगा। इसलिए ये जो गाइडेंस है, मतलब ये मैं बता रहा हूँ ना, जो जो आपको बांध के रखेगी, ये आपका ट्रैक है, आपको इसी में दौड़ना है, आपको इधर उधर कहीं नहीं जाना, आपको दौड़ना है इसी में, तो वो जो है आपको किसी, मेरा मानना है व्यू ये है कि किसी कोचिंग को ज्वाइन करने से आपको ये मिल जाता है कि आपको दिशा निर्देश मिल जाती है। वो आपकी स्किल्स में कितना इंप्रूवमेंट करता है दैट डिपेंड्स ऑन यू, कि आपने कैसे लिया। बट ज्वाइन करने से फायदा ये होता है कि आपको पता है कि मेरे को पढ़ना क्या है और कितना पढ़ना है। आप वैसी चीज नहीं पढ़ेंगे, कम से कम टाइम वेस्ट मत करेंगे ना आप कि मैं ऐसी चीज पढ़ रहा हूँ जो कभी आने नहीं वाली। तो वो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने करके देख लिया ये पहली बार, मैं एक एक सिलेबस की एक एक लाइन पढ़ के मैंने कोशिश करी कि मैं वैसा करके देख लूं, पर फंस गए उसमें, क्योंकि ऐसे चीजों को मैं पढ़ रहा था जो कभी आई नहीं। तो वो चीजें थोड़ी टाइम वेस्ट हो जाती, फिर वो मुझे लगता है यार वो उसमें टाइम वेस्ट कर दिया मैंने, भले ही सिलेबस को स्टिक किया बट टाइम वेस्ट कर दिया, क्योंकि वो जिंदगी में आना ही एक क्वेश्चन है, तो फिर मैं क्यों उसमें टाइम वेस्ट करूंगा इतना, और रट ही लूंगा। तो इसलिए आप थोड़ा फोकस स्टडी हो जाती है, उससे और कुछ नहीं है। और आपको लगना पड़ेगा, अगर कोई 4 घंटे आपको पढ़ा रहा है तो 4 घंटे तो पढ़ोगे। सेल्फ करोगे तो क्या 1 घंटा पढ़ोगे, फिर व्हाट्सएप आ जाएगा, फिर दोस्त आ जाएंगे, फिर ये हो जाएगा। और आजकल तो सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन यही है, व्हाट्सएप, फोन, फेसबुक, सोशल मीडिया। तो आप उसी में रह जाओगे, अरे यार उसका बर्थडे था, अरे यार वो तो देखो अभी लंदन में घूम रहा है, वो यार उसकी जॉब लग गई है, आपके साथ वालों की जॉब लग गई होगी, आप उनकी फोटो देखते रहोगे कि फ्लाइंग टू, ये भले ही ट्रेन में गया हो पर फ्लाइंग डालेगा वो तो आप उसको देख के परेशान होते रहोगे। तो इसलिए आप फोकस स्टडी करने के लिए आपको किसी को ज्वाइन करके एटलीस्ट 4-6 घंटा फोकस मारो। अपने एक यूट्यूब में क्वेश्चन है निखिलेश का, सर शॉर्ट नोट्स कैसे बनाएं? जैसे अपन ने इनिशियल में कोचिंग ने नोट्स बना दिए फुल, उसके बाद शॉर्ट नोट्स बनाए तो कैसे बनाएं, और बनाना कंपलसरी है या नहीं है? नहीं, शॉर्ट नोट्स का कुछ नहीं है। शॉर्ट नोट क्या होता है, शॉर्ट नोट वो जो आप बड़े चीज को निचोड़ के इतना सा ले आओ ना, तो वही है न्यूमेरिकल है। भाई आप जितना इंजीनियरिंग सर्विसेज के पढ़ रहे थे, जो नहीं आया वो रट लो, लिख लो, वही लिख लो। मैं आपको बता रहा हूँ, मेरी एक किताब थी खाली, जिसमें मैंने सिर्फ इंजीनियरिंग सर्विसेज में जो नहीं आया मुझे, उसमें कोई ईगो पे नहीं लेता मैं। और कभी मत लेना किसी क्वेश्चन को ईगो पे मत लेना। नहीं आया कोई बात नहीं, लिख लिया, रट लिया, बस। उसके अलावा मुझे क्या लेना देना उससे कि उसने क्यों ऐसा किया था और ऐसा क्यों होता है, एक्सेप्शन है यार, कुछ होता है तो होता है, वो बस मैं मान लेता हूँ, और वो लिख के रख लो। और शॉर्ट नोट्स का सिंपल सा फंडा ये, बड़ी जो आपके नोट्स हैं, मेजर नोट्स, उसमें से आप जो मेजर मेजर पॉइंट है उसको आप लिख लो एक साइड से। पर उसका मतलब मैं ये मानता हूँ कि शॉर्ट नोट और ये जो लॉन्ग नोट, उसका कोई कंसेप्ट नहीं है। मतलब सिंपली आपको जो चाहिए वो लिख के रखिए और उसको पढ़ते रहिए, तभी फायदा है जब उसको रिवाइज करेंगे। क्योंकि आपने रख दिया अलमारी में सजाने के लिए तो कभी नहीं रिवाइज होगा, ये ध्यान रखिए। मेरे को रिवाइज करना पड़ेगा डेली, दिस इज अ डेली प्रैक्टिस। मतलब यही इस खेल का इंपॉर्टेंस है कि आप ये नहीं सोचें कि आखिरी दिन में जाके मैं कुछ कर लूंगा और वहां तोड़ दूंगा, ऐसा नहीं होता। इतना वो नहीं है, इतना आसान नहीं है ये।
किसी भी सर स्टूडेंट का एक कोई डाउट? क्वेश्चन है लाइव। हाँ मैम। सर सर लाइव मेरा चैट डाउट से है अमन वर्मा का क्वेश्चन है, इज इट नेसेसरी टू सॉल्व PYQs फॉर गेट, इसरो, बार्क एंड PSU एग्जाम? मतलब आईएएस के जो PYQs होते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं, क्या वो गेट के लिए, इसरो इसरो के लिए, बार्क के लिए या अदर PSU एग्जाम्स के लिए भी सॉल्व किए जा सकते हैं, या जरूरत है सॉल्व करने की? देखो, आप इंजीनियरिंग सर्विसेज के पेपर गेट के लिए मत लाओ। मैं आपको वो पहली डिमार्केशन मुझे पर्सनली ये है, इंजीनियरिंग सर्विसेज का पेपर इज अ डिफरेंट गेम। इंजीनियरिंग सर्विसेज का जो पेपर होता है वो होता है ग्रंथ। वो एक ऐसी कुंजी और ग्रंथ है जिससे जितनी पीएसयू है ना उससे क्वेश्चन उठाती हैं। आप समझ रहे हैं? पीएसयू वाले को क्वेश्चन चाहिए, और पीएसयू वाले को क्वेश्चन किससे बनवाना है? अभी इसके कंसेप्ट को समझ लीजिए कि पीएसयू वाले को क्वेश्चन उसके एम्प्लॉय से बनवाना पड़ेगा, या किसी ऑर्गेनाइजेशन को बोलेगा भाई तू पेपर बना, वो कहां से उठाएगा? भाई उसको फैक्ट चेक भी करना है, उसको क्वेश्चन पेपर का आंसर की भी बनानी है, तो वो कहां से उठाएगा? वो उठाएगा प्रीवियस ईयर इंजीनियरिंग सर्विसेज से स्टैंडर्ड वाले क्वेश्चंस, और जो न्यूमेरिकल उठाए होंगे वो गेट से उठा लेगा। तो अगर आपको पीएसयू की तैयारी करनी है तो पीएसयू के लिए बेस्ट आप इंजीनियरिंग सर्विसेज के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करिए। इंजीनियरिंग सर्विसेज के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन गेट में काम आएंगे ऐसा नहीं है, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। क्योंकि वहां आपको कंसेप्ट नहीं चाहिए, वहां आपको रटा हुआ होना चाहिए। मतलब वहां बहुत, जैसे आप ये मान लो AI EEE की आप कभी IIT के लिए नहीं लगाते हो, AI EEE इज डिफरेंट। तो AI EEE कुछ हो जाएंगे जो IIT में आ जाएंगे, इक्का दुक्का एक दो, पर वो भी नहीं आते अब। तो आप ये IIT को अलग रखिए, AI EEE को अलग रखिए। मतलब इंजीनियरिंग सर्विसेज को इंजीनियरिंग सर्विसेज PSUs एक उसमें जाने दीजिए, गेट एक में जाने दीजिए। गेट के हाँ न्यूमेरिकल PSUs में आ सकते हैं, लेकिन जो फैक्ट क्वेश्चंस होते हैं मैं आपको बता रहा हूँ, इसरो में मतलब जैसे मैंने इसरो भी निकाला था, बार्क भी निकला था, सेल, अब सारे कर डाले। और हाँ, इंजीनियरिंग जो गेट के क्वेश्चन पेपर होते हैं वो आपकी जैसे IIT के अंदर कई बार इंटरव्यू होता है। जैसे मेरा मन था थर्मल साइंसेज में बड़ा तोप मारने का, मेरे नाम का नंबर बनाना था मुझे कभी, तो मैं थर्मल साइंसेज के लिए हर जगह भरा ले सारी IITs में। पहली बार जब गेट दिया तो मेरा किसी IIT में कॉल नहीं आया, तो मुझे बड़ा गुस्सा आया। फिर मैं अगली बार जब गेट हो गया तो मैं सोचा इस बार सिर्फ थर्मल भरूंगा, सारी IIT में थर्मल भरा। तो थर्मल के लिए क्या होता है, उनके कई बार होते हैं टेस्ट। IIT बॉम्बे थर्मल के लिए अपना सा अलग से टेस्ट लेता है, मतलब वो उसका अलग ही लेवल का स्वैग है। वो बोलता है कि मेरे को गेट से मतलब नहीं है, मैं अपना अलग से थर्मल का टेस्ट लूंगा। वो मैंने दिया था। तो उसमें क्या होता है कि वो गेट के कुछ लेता है और इंजीनियरिंग सर्विसेज का कन्वेंशनल लेता है, कि वो कन्वेंशनल टेस्ट होता है। हाँ, अगर आप इंजीनियरिंग सर्विसेज का कर लोगे ना तो आपका ये जो एक CSR JRF वाला एक पेपर होता है, वो मैंने ऐसे इसलिए दिया था कि मुझे प्रैक्टिस करना था तब। तो JRF का पेपर हो गया, या आपके जो लोकल जो स्टेट सर्विसेज के जो पेपर होते हैं इंजीनियरिंग के, इन चीजों में बड़े स्टैंडर्डली वो यूज हो जाता है, क्योंकि वो एक स्टैंडर्ड पेपर है। मेरे से आदमी किसी को क्वेश्चन पेपर बनाना है तो एक महीने में ऐसे क्वेश्चन पेपर बनाएगा, वो अलग से तो कोई इन्वेंट नहीं करता। तो इन्वेंशन इज नॉट पॉसिबल इन इंजीनियरिंग सर्विसेज इन PSUs। जो इन्वेंशन है वो सिर्फ IITs में होता है, IIT के क्वेश्चन पेपर में होगा, यानी कि सिर्फ गेट में होगा, और उसको उठा के वो कहीं ना कहीं इधर से चिपका देते हैं। तो इसलिए आप उसको मिक्स मत करिए। आप कभी इंजीनियरिंग सर्विसेज के क्वेश्चन को गेट के लिए करोगे वो अवॉइड करो, दैट्स नॉट एडवाइज्ड जनरली। ओके सर, एक और क्वेश्चन है स्टूडेंट्स का कि जो टेक्निकल पार्ट है ES में वो कैसे डील करेंगे? कौन सा वाला? नॉन है, एप्टीट्यूड इंग्लिश नॉन वाला पार्ट है, वो टेक्निकल का कैसे देखिए, डील? नॉन टेक्निकल में मैं आई एम नॉट दैट कॉन्फिडेंट, और मैं मतलब उसमें आपको इतना प्रॉपर आंसर नहीं कर पाऊंगा। बट उसका जो मेरा मानना है, उसके लिए किसी कोचिंग की, किसी अच्छी कोचिंग की आप बुक उठा लीजिए, और उसमें जो है वो रट इंग्लिश, और वो देखिए, वो कभी वो सिखाया नहीं जा सकता। कुछ चीज़ें ऐसी हैं, आप सोचें कि मैं इंग्लिश कर लूंगा और ये पढ़ लूंगा, या मैं GS एकदम पढ़ लूंगा, तो ऐसा आप समझिए हर कोई ऐसा ही है इस खेल में। जितने इंजीनियर्स दे रहे हैं वो सब उतने ही पैदल हैं जितने आप हैं। तो GK सबकी उतनी ही है जितनी आपकी है। हाँ, कोई न्यूज़पेपर पढ़ रहा है तो 2-5 क्वेश्चन ज्यादा कर लेगा, बट उससे आप कभी उसमें मत रहिए कि यार वो मैं कर लूंगा तो बहुत ज्यादा होगा। तो मेरा उसमें इतना ज्यादा मैं कॉन्फिडेंटली नहीं बता सकता, बट जो मेरा व्यू है, मैंने यही किया था कि एक दो जो किताब थी वो 1-2 महीने पहले पढ़ना चालू कर दी थी, और बीच बीच में कभी कभार जैसे न्यूज़ देख ली या व्हाट्सएप पे, तब तो फोन में स्मार्टफोन था नहीं, तो मतलब जो न्यूज़पेपर में पढ़ लिया। तो उससे ज्यादा उसमें एफर्ट डालने का है नहीं। मतलब आप मान के चलिए सभी कमोवेश वही हैं।
एनी क्वेश्चन स्टूडेंट, किसी का कोई क्वेश्चन है इसके अलावा? चैट पे कुछ क्वेश्चंस हैं कि अगर हम प्रीवियस प्रैक्टिस कर रहे हैं तो वो टॉपिक वाइज करें प्रैक्टिस, कि हम उसको बिल्कुल पूरे पेपर को साथ में सॉल्व करें। बिल्कुल टॉपिक वाइज करें, क्योंकि आप एक टॉपिक पढ़ते हैं और एक टॉपिक के साथ ही क्वेश्चन करें। आपको उसकी दिक्कत जो आपने पढ़ा उसी के क्वेश्चन लगाएंगे तो आपको पता चलेगा कि मैंने क्या नहीं पढ़ा। आप फैला देंगे रायता तो आप 10 जगह पढ़ने बैठेंगे तो आप सब में कंफ्यूज हो जाएंगे। आप किसी एक टॉपिक को पकड़िए। जैसे मैं अगर फ्लूइड मैकेनिक्स करी तो फ्लूइड मैकेनिक्स के मैं सिर्फ फ्लूइड मैकेनिक्स करूंगा। कम से कम आपको ये तो पता चलेगा कि फ्लूइड मैकेनिक्स में आप क्या नहीं कर पाए। आप थर्मोडायनेमिक्स, फ्लूइड मैकेनिक्स और सारे एक साथ लेकर बैठ जाएंगे तो आपको कुछ भी नहीं पता चलेगा। आपको लगेगा यार ये भी नहीं पढ़ा, तो आपको स्ट्रेस हो जाएगा कि यार ये भी नहीं आता, ये भी नहीं आता, ये भी नहीं आता। भाई आपने जब पढ़ा ही नहीं तो आपको आएगा कैसे? आपने जो पढ़ा है आप वही करिए ना, तो आपको उससे कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। तो मल्टीपल डायमेंशन मत खोलिए, सिंगल एक ही में जाने दीजिए और उसका बेस्ट है। सर हाँ सर Yes. गेट के लिए सर जो क्वेश्चन आते हैं, तो सर अगर प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन आते हैं कि सर वो री इन्वेंट होता है। मैं आपको बता रहा हूँ, गेट इज आईआईटी, वो री इन्वेंट करता है। मतलब वो इतना भी वो नहीं है कि आपके लिए 65 क्वेश्चन वो प्रीवियस से निकालेगा। कंसेप्चुअली वो हो सकता है, लाइन ऑफ थॉट सेम रह सकता है, बट एग्जैक्ट सेम होगा वो मुझे डाउट है। वो इतना आज की डेट में कोई नहीं रखता। आपका कंसेप्चुअल सेम हो सकता है। जैसे मान लो मैन्युफैक्चरिंग का क्वेश्चन कर रहे हो, मैन्युफैक्चरिंग में वो सेम टाइप का बता सकता है, रेक एंगल ये था, कटिंग फोर्स ये बनी, आप कैसे बनाएंगे। तो आज उसने ये दो चीज पूछी, कल को कोई दूसरी चीज पूछ लेगा, चिप थिकनेस पूछ लेगा, T1/T2 पूछ लेगा, या उस टाइप के क्वेश्चन पूछ लेगा। मतलब कंसेप्चुअली वो उसी में कहीं घूम रहा होगा, बट वो सेम हिट करेगा ऐसा नहीं है। इंजीनियरिंग सर्विस हाँ पूरा करता है। आप इंजीनियरिंग सर्विस में प्रीवियस ईयर करोगे तो आपको 10-15 क्वेश्चन तो हमेशा रिपीट मिल जाएंगे। वो स्टैंडर्ड रिपीटेशन है उनका, उनपे उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है उसके अलावा। अगर वो बोलता है कि कार्नोट साइकिल की एफिशिएंसी सब, रिवर्स कार्नोट क्या है, कार्नोट क्या है, वो फिक्स है उसके। वो कभी इनसाइड टेम्परेचर के बारे में बोल देगा, कभी आउटसाइड टेम्परेचर के बारे में बोल देगा। इंजीनियरिंग सर्विसेज ये कर लेता है। आईआईटी का जो गेट का पेपर होता है वो जनरली इस टाइप के अवॉइड करता है। वो आपके कंसेप्ट वही रखता है हालांकि, लेकिन उसके अलावा आसपास घुमा दे। जैसे कभी रेफ्रिजरेटर की बात करा तो अगले साल गेट पूछ लेगा कि वो रेफ्रिजरेटर की जगह आइस क्यूब डाल देगा, या उसके अलग इनसाइड टेम्परेचर और वो उस टाइप की पूछ लेगा। या वो कभी आपको फ्लूइड में अगर वॉल पे प्रेशर पूछ रहा है तो कभी वो फोर्स पूछ लेगा। वो कुछ भी बना देगा। मतलब वो मैसनरी वाला, उसमें मिस्त्री काम कर रहा था, उसको कितनी फोर्स लगेगी, वो उस टाइप की अंग्रेजी पूछ लेगा। तो वो थोड़ा ट्विस्ट जो है वो गेट करके देता है। आप इंजीनियरिंग सर्विसेज में इतनी नहीं है, वो ट्विस्टिंग नहीं करता है ज्यादा। वो बहुत स्टैंडर्ड फॉर्मेट है उसका, वो आप रट लेंगे तो भी बहुत फायदा है। सर एक क्वेश्चन चैट बॉक्स में ये आया हुआ है कि अगर अभी सिर्फ 6 महीने बचे प्रिपरेशन के लिए और हमने अभी स्टार्ट किया है, तो हमें कैसे प्रिपेयर करना है चाहिए? मैं वही बता रहा हूँ, फोकस स्टडी आपको किसी को ज्वाइन करना पड़ेगा। मैं इसलिए आपको बोल रहा हूँ, आई एम नॉट प्रमोटिंग एनीथिंग, और मैं ये नहीं बोल रहा कि आप अपने पैसे लगाओ। आप कुछ भी कर लीजिए, बट एक किसी को पकड़ लीजिए, उससे आपकी स्टडीज फोकस हो जाएंगी। आप फेंकेंगे नहीं इधर उधर। आपको 4 घंटा पढ़ने का समय टेंटेटिवली आप पढ़ेंगे ही, और किसी को फोकस स्टडी करेंगे तो आपके प्लानिंग उसके हिसाब से आप कर सकते हैं। नहीं तो आप खुद से पढ़ेंगे तो आपको डेफिनेटली आई एम श्योर कि आप फंस जाएंगे। क्यों? पहले पढ़ा, सुबह पढ़ा, मेरा मन नहीं है तो मैं लेट उठूंगा, फिर आप फोन पे बैठ जाएंगे, फिर नाश्ता करेंगे, खाएंगे पिएंगे, वो टाइम वेस्ट होता रहता है। किसी को पकड़िए और उसको फॉलो करिए। मतलब किसी को भी आप फॉलो कर लीजिए, बट बेटर है कि आप फोकस स्टडी करेंगे उससे। ये इंपॉर्टेंट है। ये नहीं कि सेल्फ स्टडी, देखो सेल्फ स्टडी करके आप रैंक ठोक लोगे ऐसे ही, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ठीक है आप कर सकते हो, पर आपको किसी कोच का गाइडेंस चाहिए। मतलब आप बिगनर, आप हाँ, सिर्फ आप अगर गेट क्लियर करना चाह रहे हो तो आप कर लीजिए, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। आप सिर्फ गेट क्लियर करना चाह रहे हो कि हाँ साहब मैं अपने खानदान में पहला इंसान हूँ जो गेट किया, क्योंकि आप भी पहले इंजीनियर हो ना, तो गेट क्लियर कर लो। बट हाँ यूं उम्मीद कर रहे हो कि मैं अंडर 500 लाऊं, अंडर 100 लाऊं, तो देखो गेम अलग है। वो अंडर 100 का गेम इज वेरी डिफरेंट। वहां एक एक नंबर की मारामारी है। उसके लिए यू हैव टू गेट अ फोकस स्टडी। गेट क्लियर करना है तो आराम से बैठो, 1-2 महीना पढ़ोगे तो गेट क्लियर हो जाएगा। इतना तो वो दे ही देता है नंबर, 35 नंबर लाना है अगर, 20, 30, 40 नंबर। सर लगभग गेट के लिए सर कितने क्वेश्चन करने पड़ते हैं अगर? यार मैं इसका अभी कह नहीं सकता, क्योंकि अब मैंने काफी सालों से मैं देख रहा नहीं हूँ। मतलब मुझे पता नहीं अब कितने क्वेश्चन कितने आते हैं, क्या आता है। यही बोल रहा हूँ, ये सारी चीजों के लिए आपके फैकल्टी या किसी को आप ज्वाइन करें। क्योंकि मतलब मैं उसमें बता नहीं सकता, मैं आपको मिसगाइड नहीं करूंगा उस पर, क्योंकि मुझे बिल्कुल उसका आइडिया नहीं है।
बट कई बार यही होता है, स्टूडेंट्स हमेशा फ्लो में जाते हैं कि यार उसका वो क्या होता है, IIT मतलब वो क्या ना 12 घंटे पढ़ता था वो टॉपर, तो उसके जगह मैं 12 घंटे पढ़ने लगता हूँ। ऐसा कुछ नहीं होता, कोई टॉपर 12 घंटे नहीं पढ़ता, कोई 20 घंटे नहीं पढ़ता। सब इंसान है, इंसान की तरह लाइफ जीते हैं, सब इंजॉय करते हैं। आप बेस्ट है कि आप किसी को जब ज्वाइन कर लेंगे तो आपको पता चल जाए। मतलब मैं उसमें कमेंट नहीं कर पाऊंगा कि एग्जैक्ट कितने क्वेश्चन हैं, कितनी कट ऑफ जाएगी, ये सब मैं बता नहीं पाऊंगा। अब रेलवे लेवल पूछो, मैं आपको बता दूंगा कि मतलब कितना क्या रहता है, क्या है। हो गया, खत्म हो गया मेरा, मोक्ष प्राप्त कर चुका हूँ मैं। तो एनी क्वेश्चन टू एनीवन, किसी का और भी डाउट है कोई जो सर से कुछ पूछना चाहते हो? जॉब का एक्सपीरियंस या जॉब के बाद क्या हॉस्टल का एक्सपीरियंस? स्टूडेंट्स आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हो और डायरेक्ट पूछ सकते हो सर से। थैंक यू सर, आपसे बात करके अच्छा लगा, मोटिवेट हो गए। नहीं बिल्कुल यार, देखो मेरे को भी अच्छा लगा काफी। खैर अगर आप यहाँ नहीं मिलता तो मैं यूट्यूब पे हूँ, मेरा चैनल है एक, उस पर आपको ये सारी चीजें नहीं मिलेंगी, आपको वहाँ रेलवे की सारी चीजें मिलेंगी। रोहित IRSME नाम से मेरा एक चैनल चलता है, कम ही लोग हैं बट ठीक है, आप वहाँ पर रेलवे की सारी चीजें देखते हो। पर मैं रिकमेंड करूंगा वो अभी मत देखना भैया, अभी वो समय नहीं है। आप कभी अपनी गेट वेट के बाद आराम से देखते रहिए, रेलवे में व्हील का डिजाइन ऐसा क्यों होता है, कोच का डिजाइन ऐसा क्यों होता है, हम तेज गाड़ी क्यों नहीं बना सकते, हम स्लो गाड़ी क्यों बनाते हैं, ये गाड़ी ऐसे क्यों हिलती है, ऐसा क्यों झटका लगता है, ब्रेक कैसा लगता है। वो अभी बाद में उसके लिए समय है, अभी नहीं है उसके लिए। पर कभी आपको कुछ ऐसा है तो यू कैन आस्क मी देयर। और अंकुश सर तो है ही, आप कभी भी मिले, मेरा बैचमेट है और मेरा इससे काफी मेमोरीज है हमारी। सो बट आई कैन जस्ट गाइड यू ऑन दैट। मतलब मैं आपको वही बता रहा हूँ कि इनसाइड कितने नंबर होंगे, क्या होगा। जो उस फील्ड में है, दोज आर द बेटर पीपल टू आंसर। आई एम नॉट इन दिस फील्ड राइट नाउ, आई एम इन फील्ड ऑफ माई सर्विसेज टू रेलवेज। सो बस यही घूम रहे हैं। तो ना मैं आपको एक और चीज बताऊं, अगर मोटिवेशन, कई बार ऐसा रहता है ना कि आपके कई कई बार आपकी लाइफ में ऐसा होता है ना कि यार मैं ये नहीं बन पाया, मैं वो नहीं बन पाया। मैं बोल रहा हूँ आप इंजीनियरिंग सर्विस में कहीं भी चले जाओ, अब कोई, मैं आपको एक चीज, आपको बहुत अच्छी चीज बता रहा हूँ, मतलब ये कई लोग शेयर नहीं करते या किसी को पता नहीं है, खासकर जो मैंने एक्सपीरियंस करी हुई। आप गवर्नमेंट सर्विसेज में किसी भी गवर्नमेंट A क्लास जॉब को ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। गेट से मैं इसलिए नहीं बोला क्योंकि गेट से कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं लगती, गेट से PSUs में लग जाती है। लेकिन आप इंजीनियरिंग सर्विस में ज्वाइन कर लीजिए, तो क्या होता है ना, आप कुछ सालों के बाद डेपुटेशन पे भाग सकते हो। मतलब ऐसा है कि ये गवर्नमेंट देखो समझदार है, गवर्नमेंट का ये मानना है कि अफसर तो बहुत हैं, तो उनको कहीं ना कहीं यूज किया जाए ना। जैसे आप डेपुटेशन में कहीं भी जा सकते हो, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल में चले जाओ, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स में चले जाओ। मैं आपको बता रहा हूँ एग्जाम्पल, ऐसे ऐसे रॉ में भी गए और अभी CBI में भी पोस्ट आई हुई है। तो मैं एलिजिबल नहीं हूँ, बट अगर हुआ तो मैं आई एम टेलिंग यू कि मैं शायद 1-2 साल डेपुटेशन पर निकल जाऊंगा। आपके एम्पल वाटर डिपार्टमेंट में पहुंच जाओगे, आप दिल्ली गवर्नमेंट के NDMC में पहुंचोगे, आप राजस्थान स्टेट टेक्निकल एजुकेशन में होंगे। आप ये बिलीव कर सकते हो कि मैं दे तो यहाँ रहा हूँ और मैं वहां चले जाके, मतलब मैं मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में घूम रहा हूँ और मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स में भी जा सकता हूँ। तो डेपुटेशन जहां आएगी आप वहां भर दो, पहुंच जाओ, अगर आपकी किस्मत अच्छी है तो ये सारी चीजें भी हैं। तो ये ठीक है। अब मैं इसलिए बोलता हूँ कि आप इसलिए देखो, कभी ये नहीं होना चाहिए कि यार मैं वो नहीं कर पाया, ऐसा नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। तो आप कुछ भी कर सकते हो, मतलब आपके दो, हर एक का अपना टाइम जोन है। आप इसमें कभी मत रहो यार वो मेरे से पहले कर लिया, कोई फर्क नहीं पड़ता, उसने कर लिया, आपका भी अपना समय है। हर आदमी को अपने टाइम जोन में होना चाहिए। मैं आज सोचूं कि मेरे से पहले तो उसने वो अचीव कर लिया, मेरे से पहले वो अचीव कर लिया, ठीक है, लेट हिम बी हैप्पी। आप उसको देख के क्यों अनहैप्पी हो रहे हैं, आप अपना हैप्पी रहो ना, आप भी अचीव कर सकते हो। और हैप्पीनेस का अपना क्राइटेरिया अलग है सबके लिए, किसी के लिए जॉब लगना हैप्पीनेस है, किसी के लिए फैमिली के साथ रहना भी हैप्पीनेस है। और अपनी प्रायोरिटीज हैं, लेकिन किसी के पैसा प्रायोरिटी है, किसी के लिए रिलेशंस प्रायोरिटी है, किसी के लिए फैमिली प्रायोरिटी है। बट मैं अभी भी वही चीज बोलूंगा, आप कुछ भी करिए, लेकिन रिग्रेट वाली फीलिंग कभी नहीं रहनी चाहिए, मतलब काश वाला फैक्टर आपकी लाइफ में कभी नहीं आना चाहिए। क्योंकि ये होता है ना, मैं आपको बताऊं, जिंदगी भर चलता है
कि शायद मैं काश वो करता, काश मैंने वो पेपर दे लिया होता, काश मैंने आईआईटी के लिए ड्रॉप मार लिया होता, काश मैं 1 साल और पढ़ लेता, काश मैं वहां जाना ही नहीं जाता, या काश मैं चले जाता। तो जो भी है कर लीजिए, इच्छाएं दबाने का कोई फायदा नहीं है। तो जैसा भी है और खुश रहिए उसमें। अगर नहीं भी हो रहा है तो ऐसा नहीं है कि मैं वो यार वो आईआईटी नहीं हुई जिंदगी में, मेरा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। मेरे साथ के, मेरे कॉलेज के भी, मेरे फ्रेंड सर्कल में भी कई ऐसे ऐसे लोग हैं जिनका चाहे आईआईटी नहीं हो, पर आज वो शायद विदेशों के 4 चक्कर लगा चुके हैं, वो 5-6 कंट्री घूम चुके हैं। मैं आज तक में भी नहीं जा पाया हूँ। तो उनकी अपनी लाइफ है, देयर इज एम्पल अपॉर्चुनिटी। आप ये नहीं सोच सकते कि ये नहीं होगा या वैसा नहीं होगा, बट इट्स नथिंग लाइक आप उसको सोचो वैसा। अपने प्रैक्टिस करते रहिए, एम बनाते रहिए, करते रहिए, कुछ ना कुछ लाइफ में हो ही जाएगा। आप यू आर ह्यूमन, यू कैन अचीव एनीथिंग। तो उसके लिए आप कभी सोचिए मत, उसमें स्ट्रेस मत लीजिए उस चीज़ का ज़्यादा कि मैं ये करूँगा ही, मेरे को ये नहीं हुआ तो क्या होगा, फैमिली क्या सोचेगी, वो क्या सोचेगी, कोई नहीं सोचेगा। कोई किसी को ऐसा सोचना नहीं है। नो बडी इज बॉदर्ड कि आप क्या करते हैं। आपको ये भी और बता दूं, आप सोचते हैं कि मैं दुनिया को दिखा दूंगा, ये कर दूंगा, ठीक है, कुछ दिन 15 दिन आपके फेसबुक वॉल बढ़ जाएगी, आपके व्हाट्सएप चैट 200 हो जाएंगी, आपके लाइक शेयर कमेंट बढ़ जाएंगे, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। 1 महीने बाद सब नॉर्मलाइज हो जाएगा, उसके साथ आपको कोई पहचानेगा भी नहीं। तो दिस इज द फैक्ट। सो आप इसका लाइव एग्जांपल देखना चाहते हो तो अभी देख लीजिएगा, ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट जो है 3 महीने बाद क्या हाल होता है। तो दिस इज द रियलिटी ऑफ लाइफ। तो यू विल फाइंड इट ट्रू। तो इसलिए बी हैप्पी एंड फॉलो योर ड्रीम्स, और जो करना चाहते हैं खुशी से करिए, पर अच्छे से करिए। और अटेम्प्ट में बिल्कुल कमी नहीं होगी, मतलब मैं काश ये नहीं करता, नहीं करें तो पूरा करें। वैभव जैन हैज रेज्ड हैंड। वैभव, आपका क्वेश्चन है तो आप पूछिए। फर्स्ट ऑफ ऑल सर, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि जैसे हम इंजीनियरिंग को ऑन थ्रू करते हैं तो फिर अभी हमारे साथ मतलब और भी बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं, नॉट ओनली गेट एंड आईएससी। हमें लगता है कि भाई कैट भी बहुत अच्छा है, हमें लगता है कि हम स्टार्टअप भी कर सकते हैं, हमें लगता है कि प्लेसमेंट हो जाएगा तो भी एक अच्छा ऑप्शन है। तो फिर सर हम कैसे स्पेसिफाई करें कि विच इज़ गुड फॉर अस, और हमें आगे क्या परस्यू करना चाहिए, और मतलब हमारा आगे क्या स्कोप होना चाहिए, अच्छा ये हम कैसे देखें सर? सी, आप उसको वेट कर लो, मतलब अब वे करो कि इसमें फायदा क्या नुकसान क्या है, मतलब सिंपल सा गणित है। एंड दूसरी चीज है कि यू आर ह्यूमन, या यू आर नॉट ट्री, कि आप कहीं फंस गए। आपके दुनिया में हर चीज है। आप मान लो पहले जॉब कर लो, जॉब का मजा नहीं आया फिर कैट कर लो, ऐसे ही होता है आज की डेट में। फ्रेशर्स को कैट में, आप एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, जैसे फ्रेशर्स होते हैं तो वो भी आई एम भी चाहता है कि फ्रेशर्स ना हो। वो ये चाहता है कि कम से कम 1-2 साल आदमी ने जॉब किया, उसको वेराइटी ऑफ एक्सपीरियंस पता है, उसको मैनेजर बनाए वो। और आप ठीक है, अच्छी बात है, आपने कैट भी कर लिया, आप उसके बाद फिर जेआरई दो। लोग जेआरई देते हैं, जेआरई में आप प्रिंसटन विंस्टन पता नहीं कौन सी। अब जैसे एग्जांपल के लिए मेरे साथ के कई लोग हैं ऐसे, मैं एक को जानता हूँ जो अब वर्ल्ड बैंक में है। तो मेरे साथ ही तो मैंने पता नहीं, तो उन्होंने दिया जेआरई, और जेआरई वेआरई दे के चले गए। पैसा, और उसके लिए पैसा भी लगता है। सो आपको ये चीज देखनी पड़ेगी ना, उसके लिए पैसा भी लगेगा, आपको उसका पैसा है क्या, या उसके बाद आप कितना कमाएंगे। अभी लोन वन लेके चले जाए हैं, उसके बाद कितना कमाएंगे। तो दिस ऑल कैलकुलेशन इज टू बी डन। रही बात फर्स्ट जॉब का, जॉब से सेटल अगर आप हो सकते हैं तो आप हो जाइए, उसमें कोई बुराई भी नहीं है। क्योंकि देखो, किसी को तो वो जॉब करनी है। अगर कोई टीचर बनने में कतराता है, देश में कोई टीचर नहीं बनेगा। ठीक है, आप कभी इस चीज को कंपैरिजन में मत जाइए कि यार मैं जैसे एनबीसी में नौकरी लग गई, या मैं तो एनबीसी में पढ़ा हूँ, वो आदमी वहां है, वो यहाँ है, उससे क्या फर्क पड़ता है। किसी को तो वो जॉब करनी है ना। अगर मिलिट्री में आदमी जाने से ये सोचेगा कि यार मैं मिलिट्री में कोई चला गया, मिलिट्री वाला आदमी क्या सोचता होगा, यार ये लोग सब देखो क्या मस्त घूम रहे हैं, ये कोई फॉरेन घूमता है, कोई ये करता है, मेरी लाइफ में यहाँ है, मैं तो यहाँ हूँ, मेरी फैमिली से दूर हूँ, और मैं निपट भी जाऊंगा तो भी मेरे को कोई पूछने वाला नहीं है। बट दैट्स द पैशन। some things are driven by your passion, some things are driven by money, some things are driven by your goals, so आपके एम्स का। so आप उसको वैसे वे करो। तो फैमिली से डिस्कस करना इज ऑलवेज गुड, बट कई बार होता है कि फैमिली के प्री कंसीव नोशंस होते हैं कि नहीं हमारा बेटा तो यही बनेगा, हमारा बेटा ये बनेगा, या हमारी बेटी ये बनेगी। ऐसा कुछ नहीं है, आपको जो अच्छा लगता है वो करिए, बट रुकिए मत। मैं आपको ये चीज बोलूँ, आप खड़े मत रहिए, आप चलते रहिए। अगर आप मान लीजिए कुछ नहीं है तो आप कम से कम कोचिंग कर लीजिए, कम से कम इस बहाने आपका दिन लगा रहेगा, आपका टाइम चलता रहेगा। क्या मतलब टेक्निकली आप
नॉलेज गेन करते रहेंगे, रुकने का कोई फायदा नहीं है। ठीक है, एक बार नहीं हुआ गेट, दोबारा दे लीजिए, 3 बार नहीं हुआ तो दूसरी बार आईएएस की तैयारी कर लीजिए, मन नहीं कर रहा तो आईएएस की तैयारी कर लीजिए, ज्यादा ही है तो आईएएस की तैयारी नहीं करनी है तो किसी फॉर्म में ज्वाइन कर लीजिए, किसी कोचिंग में चले जाइए, किसी स्टार्ट, अगर आपको मन नहीं है तो किसी आईआईटी या एनआईटी या किसी भी कॉलेज में आप एमटेक चालू कर लीजिए, खड़े मत रहिए। तो कोई पेपर देते रहिए, टाइम पास कुछ नहीं है, पेपर देते रहिए। हाँ, प्रेशर रहता है कि जब तक नौकरी नहीं है तो घर वाले भी बोलते हैं ये है वो है, बट ठीक है, 1-2 साल बोलेंगे, जाओगे नौकरी लग जाएगी तो शायद कोई कुछ नहीं बोलेगा। स्ट्रेस मत लीजिए उस चीज का कि मेरा ये, मैं बेरोजगार हूँ, क्योंकि देश की कंडीशन भी इस वक्त ऐसी ही वो नहीं है, मैं कहूँगा कि बहुत नौकरियां हैं, बट जो है बी हैप्पी, मतलब सबके साथ है, आप अकेले नहीं है, सभी हैं, तो हर इंसान ऐसा ही है। तो आप वे करिए उसको कि देखिए उसका फायदा क्या है, नुकसान क्या है, वेदर इट इज विद माय हैप्पीनेस, मुझे किसमें मिलेगी, आप वो करिए, उसमें कोई वो नहीं है। जॉब करना इज नॉट अ रॉन्ग थिंग, आप जॉब करना चाहते हैं करिए, उससे आप स्विच करिए, दूसरी जॉब में जाइए। मेरे एक फ्रेंड हैं जो पहले उसने नॉर्मल जॉब करी, फिर उसने स्विच किया, स्विच करते करते उसकी कंपनी उसको 4 बार जर्मनी भेज दिया, अब वो अपने होम टाउन पहुंच गया और घूमता रहता है, और वो अच्छा लगता है, वो कर रहा है, इलेक्ट्रॉनिक्स का था, जो उसको अच्छा लगता है करता है। अभी वो इलेक्ट्रिक साइकिल बना रहा था, कभी वो इलेक्ट्रिक व्हीकल बना रहा था, उसका मन करता है, ही इज टेक्निकली साउंड मोर। हम जैसे क्या, आप इंजीनियरिंग सर्विस में आने के बाद मैं थोड़ी टेक्निकली साउंड रह गया, बट ठीक है, मेरे को पढ़ने का अच्छा लगता है, आज भी पढ़ता हूँ। सो दिस इज ऑल डिपेंड्स ऑन दैट थिंग, व्हाट यू लाइक टू डू, दैट्स इट। थैंक यू सो मच सर। किसी स्टूडेंट कोई क्वेरी है, हम लोग एक लास्ट क्वेश्चन और लेंगे बिकॉज टाइम लिमिटेड है हमारे पास। ऑलरेडी लाइव चैट्स के जितने कॉमन क्वेश्चन और यहाँ पे स्टूडेंट्स के जो चैट बॉक्स पे क्वेश्चंस थे, मैक्सिमम के आंसर सर ने कर दिए हैं। प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी फॉर ईएस, एवरीथिंग ही हैज मोटिवेटेड अस। बहुत अच्छे से सर ने बहुत वे में हमें सारा कुछ बताया है। तो किसी का कोई और क्वेश्चन है? तो सर किसी का क्वेश्चन है साहिल का, सर आईआरएमएस का कोई आइडिया सर आपको? कोई रेलवे बिल्कुल अलग। आइडिया नहीं है, बिल्कुल 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 आइडिया नहीं है आईआरएमएस का भी मुझे, कि अभी तक तो मैं आईआरएमएस में नहीं हूँ, आईआरएमएस अभी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है, और अभी तक तो कुछ नहीं है, मतलब ऑन टेबल भी। ओके साहिल, आई थिंक आपका क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा कि सर को इसके बारे में कोई आइडिया नहीं है। आप गूगल सर्च करिए, गूगल पे आपको कुछ मिल जाए। ओके, तो आई थिंक सभी के डाउट क्लियर हो चुके हैं सब, और सर ने बहुत ही अच्छे से बताया कि किस तरह की स्ट्रेटेजी रखनी है, क्या चीजों का ध्यान रखना है, पढ़ाई के टाइम क्या ध्यान रखना है, और क्वेश्चन पेपर सोल्व करते टाइम क्या ध्यान रखना है, गेट के लिए क्या अलग चीजें है और आईएएस के लिए क्या अलग चीजों का ध्यान रखना है। तो थैंक यू रोहित कि थैंक यू आपने यार, थैंक यू वेरी मच। कि इतना टाइम दिया और सभी स्टूडेंट को मोटिवेट करा, साथ में हम भी मोटिवेट हुए। नहीं, थैंक यू, और मतलब आई आई अप्रिशिएट द ग्रेट वर्क यू पीपल आर डूइंग यार, मतलब इट्स गुड टू सी दैट यार, मतलब सब इतना कर रहे हैं लोगों के लिए, मतलब इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब मैं नहीं कर पाता उस टाइप से, बट यू पीपल आर डूइंग अ ग्रेट वर्क एटलीस्ट फॉर टेक्निकल्स और फॉर स्टूडेंट्स, मतलब वास्ट वैरायटी ऑफ स्टूडेंट, हर एक के पास उतनी एक्सेसिबिलिटी नहीं है। So you people are doing a great work, and I hope all best wishes to all students, and पढ़ते रहिए, करते रहिए, मतलब सब अच्छा होता है, और कुछ भी अच्छा हो सकता है, मतलब जब एक बार गोल्ड मेडल आ सकता है जेवलिन में तो सब कुछ हो सकता है। ओके चलो, थैंक यू। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू सो मच सर, बहुत अच्छा लगा ये सेशन करके, बहुत थैंक यू मैम, की थैंक बातें यू। सुन के हम सब मोटिवेट। Okay, students, so this was for this session. Queries have not been answered yet. We'll try that queries would be answered in our next session talk episode. Actually, we have some time constraint and we already have passed 1 point. So we are ending on this note. So we have started a free gate test series also.
join that GATE test series on techufaculties.com. Also, everything section of all our Telegram groups, our website link, all our social media handles are there in the description box. So you just check it out and keep learning. Happy learning with TechuGate classes. Bring you more such episodes on Toppers Talk so that you can live interact with IAS officers, and some great toppers, and you can gain a lot of this. Thank you all. Thank you so much. Ankusha, I am ending the stream.